So, our guest today for this wonderful program, his name is Mr. Yatin Joshi, and he's from the town Pune from India. His background is into the technology. He's a MTech by qualification, and then he worked with the Cisco Council with variety of activities, and then he had many other related qualifications into theme. He's also pursuing his further studies. And then when he was working, he started studying Yoga Vasishtha, and that drawn him more into the depth of this teaching. And he got so engulfed into this teaching that he left his job into the high tech, and his life is now dedicated to teach this beautiful knowledge, share it with everybody. And he teaches variety of programs in different companies using these stories from the management perspective and how to use this for our life. Apart from that, he is also yoga and meditation teacher, and he has a lot of other interests which are to deepen this knowledge and also the good heart to share it with everybody. So we are very happy to have this series. After thinking about variety of names, we narrowed it down to the 7 James, and hope you all enjoy. Every month we will meet on the 4th Tuesday of the month to share this knowledge. Now, this program he wants, and we also want it to be different and interactive. That means he will be asking us a lot of questions. We'll be talking back to him. So make sure that when you talk, after you finish, you mute your microphone so we don't hear the other disturbances. And the second thing, request is don't keep the dark windows. Turn on your videos and let us see your beautiful smiley faces, because that really helps into the interactive sessions like this, rather than just see the names iPhone, iPad, and Galaxy. So let us define which star is from which galaxy, so we can define this theme in this knowledge. As I was working on presenting the introduction in the morning, I came across some beautiful quote by Swami Vivekananda, and I think it's appropriate to share it, and I will hand it over to Yatin. So this session is what Vivekananda said: experience is the only teacher we have, and we may talk and reason all our lives, but we shall not understand the word of truth until we experience it ourselves. You cannot hope to make someone a surgeon by simply giving them a few books. You cannot satisfy my curiosity to see a country by showing me a map. I must have actual experience. Maps can only create curiosity in us to get more perfect knowledge. Beyond that, they have no value whatever. So this is from his book called as the Raja Yoga. And I think that's the most appropriate description of this program. This is not all the seniors have a lot of wisdom and they hear a lot of beautiful things, and they are living encyclopedia of knowledge. Now the beauty of this session is we know a lot of things. How can we apply it in reality to enhance our life better and make it a beautiful experience so we can live into our goal of life, the bliss and the happiness. So welcome to Yatinji. Thanks for joining us and accepting our request. We are a lot of people who are excited, who know a lot about Yoga Vasishtha, so they are all looking forward to this session. So here we invite Mr. Yatin Joshi. Thank you, Dr. Sachin. Thank you so much. ये बड़ी खुशी की बात है, आप जैसे सारे एक्सपीरियंस बुजुर्ग लोगों के साथ यहाँ पे ज्वाइन करूं और अपने कुछ अनुभव शेयर करूं। सबसे पहले मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है?
Yeah, it's very good. तो सबसे पहले एक प्रार्थना से शुरू करता हूँ। ये हमारा जो यूजुअली प्रोसीजर होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। सेशन थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल, काफी सारा प्रैक्टिकल होने के कारण इसके कुछ शुरू के प्रोटोकॉल्स हैं, वो थोड़े कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उन सारी शक्तियों को मैं वंदन करता हूँ जिनके कारण यहाँ पे हूँ और आपके सामने कुछ अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। साथ ही आप लोगों को, जो आप सुनने वाले हो, सारे श्रोता, जिनके कारण मैं यहाँ पे कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि कुछ बोल सकता हूँ, तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और हम यहाँ से आज शुरू करेंगे। एक बात एकदम क्लियर बोल देना चाहता हूँ, योग वासिष्ठ ये विषय ऐसा कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने काम नहीं किया है और क्योंकि उसकी गहराई बहुत है, अनेक 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 विषयों को वो स्पर्श करता है, टच करता है। तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोलूंगा, अगर अच्छा लगा तो समझिए कि वो ईश्वर की कृपा है जिसके कारण ये हो रहा है, और अगर ऐसा लगा कि नहीं, कुछ उसमें कमियां हैं, त्रुटि है, तो फिर वो मुझे एक बालक समझ के आप माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अपना मन थोड़ा बड़ा कर लीजिए उसके बारे में। ये योग वासिष्ठ जैसे वीणा जी बता रही थी, उन्होंने एक सबसे पहले श्लोक कहा कि यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्र एव उपशमं यान्ति तस्मै श्री परमात्मने नमः। तो ये एक ही तत्व के बारे में यहाँ पे सब बताया गया है और उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग मार्ग हैं। योग वशिष्ठ ये इतना बड़ा ग्रंथ है, 32,000 श्लोक है, 32,000 वर्सेस है। अगर रामायण में देखे जाए तो उसमें करीब 18,000 है। तो महाभारत के बाद इसी का नंबर लगता है, जो साइज के एंगल से अगर देखा जाए। और इसकी कहानियां अति सुंदर है, करीब 52 कहानियां इसमें योग वशिष्ठ में है, छोटी मोटी लेके इसमें काफी सारी कहानियां हैं। तो हम आज एक कहानी भी सुनेंगे योग वशिष्ठ की, जो एक्चुअली आखिरी कहानी आती है। पर आज एक थोड़ा सा आपको लगे कि इसकी कहानियां कैसी हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस कहानियां क्या क्या मैसेजेस हमें दे सकती हैं, आज वो थोड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, योग वशिष्ठ में सचमुच काफी इंटरेस्टिंग बातें रहेगी। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जब मैं योग वशिष्ठ की पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा मन में आया कि चलो बाकी लोगों से भी पूछा जाए, मेरे जो भी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लोग थे, पहचान के लोग थे, उनसे बातें करते हुए ऐसे ही पूछ रहा था कि भाई योग वशिष्ठ पढ़ा है क्या? तो सब बोलते थे हाँ, शुरू तो किया था। हाँ, और शुरू किया था, उसके बाद फिर रिस्पांस आता है कि हम कुछ पन्ने पढ़ सके, उसके बाद फिर कुछ तो बाधाएं आते गए, कुछ तो ऑब्स्टेकल आए, फिर नहीं कर पाए। कोई बोले कि हाँ, हमने कोशिश तो की लेकिन थोड़े पढ़ने के बाद फिर नींद बहुत आ जाती थी। तो रात को सोते समय पढ़ते थे, बस थोड़ा आधा पैराग्राफ पढ़ लिया, आधा पन्ना पढ़ लिया और फिर नींद में चले गए। तो उसके कारण फिर वो रह गया। तो बहुत कम लोग हैं जो योग वशिष्ठ को पूरा पढ़ चुके हैं और उसका अभ्यास करते हैं। स्वामी रामानंद तीर्थ ने भी कहा था कि दिस इज द बेस्ट स्क्रिप्चर अंडर द सन। तो है, इसमें काफी सारा पोटेंशियल है। आप जब सुनेंगे, इसकी बातें सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या गहराई है। तो मैं इसकी शुरुआत आज एक कहानी से करता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताऊंगा, योग वशिष्ठ का क्या क्या कैसे चल रहा है, योग वशिष्ठ कैसे आया, योग वशिष्ठ की शुरुआत कैसे होती है, ये सारी बातें फिर हम धीरे धीरे देखेंगे।
तो आज के सेशन में कुछ बातें ये रहेगी कि एक कहानी योग वशिष्ठ की, उसके बाद योग वशिष्ठ क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, जहां तक हो सके हम एक छोटा सा, मैं उसको प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे विचार और ध्यान इकट्ठा होगा इस तरह का एक प्रोसेस करेंगे। आपको पूरा ध्यान देके सुनना है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे जो आपको पूरा अगले हफ्ते सोचना है, उसके ऊपर विचार करना है, और फिर नेक्स्ट वीक इसके ऊपर आपको अपने विचार शेयर करने हैं, आपका अनुभव कैसे रहा। हाँ, जैसे डॉक्टर सचिन ने कहा, योग वशिष्ठ है, ये जीने की बात है, ये केवल सुनने की नहीं। सुना तो बहुत होगा हम लोगों ने, पर ये जिया जाए। अभी भी जीवन में जो समय हमारे पास बचा है, किसके पास कितना समय बचा है कोई बता नहीं सकता, लेकिन जो भी बचा है उसका हम सही उपयोग कर लें, तो फिर ये कहेंगे कि योग वशिष्ठ हम जिए, ये नॉलेज हमने अपने जीवन में लेके आए। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इसका पहला गुण है कि निर्भय होना। और वो कैसे हो सकते हैं निर्भय, तो ये कहानी सुनेंगे फिर थोड़ा हमें एक अंदाज आ जाएगा। वैसे योग वशिष्ठ की सबसे अंत में, आखिरी में आई हुई कहानी है। बाय द वे, योग वशिष्ठ में जहां भी कहानियां आई है ना, वो ऐसी स्ट्रेट आई है, ऐसी नहीं है। वो कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, ऐसा घुमाते 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 आदमी जब वहां तक पहुंचता है, सुनने लगता है, पढ़ने लगता है, तो विचार करता है, अरे शुरुआत कहाँ से की थी हमने। और एकदम मतलब 7 लेयर, 6 लेयर, 5 लेयर, उसके बाद फिर ये हमारे सामने कहानी आती। Yatin ji, तो हाँ जी। just I want to interrupt you here. There is your follower who is, I will not, who doesn't understand Hindi. So, if possible, time to time, please speak some part of in English also, so that she ओ, could also understand, no? If possible, ओके। please. Please. Oh, here he is. Okay. Difficult. All right. So, yeah, actually, the message got spread out to a lot of people. Initially, it was targeted in English, but then we decided to switch it over to Hindi. No worries, I will try to mix it, okay, from time to time. And I'll also have additional sessions in English, separately for take if the caption works for you, there is an option for captions. Okay. Um, will it translate into English? Sachin ji can tell about this. What I speak, I don't think it can translate. I turned the caption on. Sometime he might be able to, but I'm not fully sure. So now you can hear it as much. You can see the typing thing. So if she chooses the language, it does help. The translation, I don't think it's available on the Zoom yet. Hmm. Yeah. So you just you go ahead with your flow. Don't worry. Yeah, Okay. a couple of people have said that it's working. Yeah, beautiful. Yeah. नहीं, पर वो इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला तो इंग्लिश में आना चाहिए कैप्शंस, वो इम्पोर्टेंट है। It पता won't नहीं translate. Yeah, it won't translate. ठीक है, I'll try to have. तो But how many So yoga people assistant. are waiting for English, you know? How many are there? I think there are couple people raising hands. Very few, yeah, Yeah, very few. Yeah. Very few. very, very few. Mostly they understand Hindi, Must yeah. be. Okay, you carry Yeah, on. please Yatin. go ahead, please You go are ahead. at the story. Yeah. Please. Yes. Continue. So, yeah, so stories of Yoga Vasishtha, they are quite involved. There are multiple layers, a story within a story, within a story, like that. So at times it is confusing. One rule we have to follow when we are listening to these stories or this knowledge. Let's become Ram
who is the receiver of the knowledge in this thing. And this is primarily a dialogue between Vasishtha and राम. ठीक है, श्री राम जी और वशिष्ठ के बीच का ये संवाद है, डायलॉग है. तो जिस जो भी नॉलेज आएगा उस तरह से रिसीव करें कि जैसे हम लोग श्री राम है करके. बताने वाला मैं वशिष्ठ नहीं हूँ. हाँ, आई एम जस्ट अ टैप, एक नल है. तो वशिष्ठ इज लाइक दैट टैंक एंड वी आर ऑल लाइक बकेट्स. ओके, तो उसका नल, दैट इज व्हाट आई एम, अ टैप. वी आर जस्ट ओपनिंग इट सो दैट द नॉलेज इज नाउ फ्लोइंग फ्रॉम द टैंक दैट वशिष्ठ टू अस. इतना हम देखेंगे. अभी ये कहानी ऐसी है, द स्टोरी गोज लाइक दिस, कि देयर वर 8 ब्रदर्स, 8 भाई थे. और कंफर्म योर स्पीकर. 8 भाई थे और उन्होंने तय किया कि वो हर एक को अपना अपना पृथ्वी का अधिपति बनना है. हाँ, उनका सपना था कि मैं पूरे पृथ्वी पे, पूरे धरती पे राज करूं. लेट मी रूल द एंटायर वर्ल्ड. दैट्स व्हाट ऑल द 8 ब्रदर्स दे ड्रीम्ड ऑफ. देयर इज सम साउंड कमिंग, सो मे बी. Hello. Yeah, you carry on. I will mute all those. Yeah. Yeah. One thing is needed here in Yoga Vasishtha, at least for me, is to continue. Otherwise, it is so involved. No? Some distraction may really throw it from off the track. Where was it? So all those 8 brothers, they decided to become the rulers of the entire earth. सबका वही सपना था. तो सबके सब 8 के 8 भाइयों ने अपनी तरफ से तपस्या शुरू कर दी. कोई एक टांग पे खड़ा रहा, कोई पेड़ को उल्टा लटक गया. ऐसे ऑल ऑफ देम दे स्टार्टेड देयर तपस्या. Recording stopped. फॉर दिस एंटायर थिंग. एंड उनको कभी तो उनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, और सूर्य भगवान ने उनको कहा कि ठीक है, चलो, यू विल गेट व्हाट यू वांट. अब पहला प्रश्न ये आता है कि 8 लोगों को एक साथ पृथ्वी का राज्य कैसे मिल सकता है? हाउ कैन ऑल द 8 ऑफ देम बिकम द रूलर्स ऑफ द अर्थ? दैट वाज वन. तो ये एक पार्ट हो. दूसरा पार्ट ये था कि इनकी पत्नियां थी, देयर वाइव्स, दे ऑल्सो वेर स्टक इनटू समथिंग. उन्होंने सोचा कि ये क्या है, हमारे पति बाहर जाके तपस्या कर रहे हैं, हम घर में उनके लिए राह देखते रहते हैं. तो उन्होंने भी कुछ तपस्या की. उन्होंने अपनी अपनी देवियों को प्रसन्न कर लिया और उनसे मांगा कि हमारे पति हमारे ही घर में रहे, वो कहीं जाए नहीं करते. तो उन्हें भी देवी का वर मिल गया कि हाँ, ठीक है, तथास्तु, आपके पति आपके घर में रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं. अब ये 2 कंफ्लिक्टिंग वर आ गए, 3 आ गए रादर. एक है कि 8 लोग एक साथ धरती के राज कैसे करेंगे. दूसरा, अगर इनको राज करना है तो घर के बाहर रहना पड़ेगा. तीसरा, बीवी का वर है, पत्नी का, कि उन्हें घर में ही रहना पड़ेगा. उसके बाद इनके पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, दे वेर क्वाइट अपसेट. उन्होंने सोचा कि ये हमारे बेटे बहू ये सारे अपने अपने तपस्या कर रहे हैं और हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है. तो दे सेड, लेट्स गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट आवर चिल्ड्रन. कहाँ पे है, जाके देख के आते. तो वो अपनी जल्दबाजी में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े. जाते जाते हुआ यूं कि सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे. अब दुर्वासा का नाम हमने सुना है, वी हैव हर्ड ऑफ सेज दुर्वासा. वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही शाप दे देते हैं. दैट वाज व्हाट ही. तो सामने से दुर्वासा आते हुए देखे, पर इनका ध्यान नहीं था. ये अपने ही मस्ती में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जल्दबाजी में ऐसे निकल रहे थे. तो जाते जाते इनके पैरों की धूल वो दुर्वासा के ऊपर उड़ गई और दुर्वास बड़े क्रोधित हो गए. ही बिकेम वेरी एंग्री एंड ही सेड कि आप लोग अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जा रहे हो, पर आपकी पत्नी, आपकी बहू, डॉटर इन लॉज एंड योर सन,
वॉट एवर मेरिट्स दे हैव अर्न, उन्होंने जो भी वर प्राप्त किए होंगे वो सब क्या होंगे, चले जाएंगे, वो कुछ काम के नहीं रहेंगे। आपको मैं ऐसा शाप देता हूं। तो अभी तो समस्या होगी कि वर पावरफुल है या श्राप पावरफुल है। तो इसके बाद होता यूं है कि जब इन सभी 8 भाइयों की मृत्यु होती है तो वर और श्राप ये अपने अपने बॉडीज बना लेते हैं और फिर इन दोनों में झगड़ा शुरू होता है। झगड़ा इस तरह से शुरू होता है कि वर कहते हैं हम तो सूर्य भगवान से आए हैं, तो सूर्य भगवान ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पहले आए हैं, तो हमारी बात सच होगी, इनको जो राज्य मिलना है वही मिलेगा। आप श्राप है, आप उनका काम नहीं होगा। But all the curses they will not be applicable, all the boons जो भी वर दिए हैं वो सक्सेसफुल हो गए। तो श्राप बोलने लगे कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हम तो दुर्वासा से आए, हम ऋषि से हैं, हमारा रुद्र रूप होता है, तो हम सक्सेसफुल रहेंगे, आपको कोई मायने नहीं रखता। तो इनका झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई वगैरह करने के लिए अस्त्र वगैरह लेकर आने चालू हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग एंड देन वर थे, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं हम लोग कि इसके बाद आप जीतो या हारो या जो भी रहेगा, अंत में कुछ तो करना पड़ेगा। So it is wise that we first go to Lord Brahma and then try to find out कि what will be the ultimate reason, what will be the ultimate result, एंड में क्या होने वाला है वो आप बता दो, फिर उस बात से हम कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों फिर वर और क्राफ्ट, बून्स एंड कर्स, दे बोथ ऑफ देम वेंट टू ब्रह्मा। ब्रह्मा के पास जाने के बाद ब्रह्मदेव ने पूछा कि क्या बात है, क्या झगड़ा हो रहा है। तो दोनों ने अपने अपनी वकालत की, बोथ ऑफ देम एडवोकेटेड देमसेल्व्स, एंड उसके ऊपर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि ठीक है, एक काम करें, आप एक दूसरे के हृदय में जाएं, गो इनटू द हार्ट ऑफ ईच अदर एंड देन फाइंड आउट व्हाट इज लाइंग देयर, व्हाट इज द अंतःसार। अंतःसार क्या है आपका, वो देखिए, आपके मन में जो सच में आया था, जो सारांश है उसका, वो क्या है बताइए। तो दोनों एक दूसरे के हार्ट में जाकर देख के आए और फिर श्राप सामने आकर कहे कि हम तो वर के हृदय में गए थे और हमने देखा कि इनकी शुद्धता ज्यादा है। अब कैसे? तो वो शुद्धता ऐसे है कि वर तपस्या कर रहे थे, वर वाली मतलब वो जो पति थे, 8 भाई थे, उन्होंने तपस्या करके कुछ मांगा है। ओके, दैट इज फर्स्ट। उसके लिए उन्होंने कुछ टाइम दिया है, कुछ टाइम स्पेंड किया है, ऐसे ही आया ऐसी बात नहीं। दूसरी बात, जो वर उनको मिला था, वो वर देने वाले की इच्छा थी कि इन्हें कुछ मिले और लेने वाले की भी इच्छा थी कि मुझे भी कुछ मिले। तो ये परफेक्टली ट्यून होता है, राइट? Those who were seeking the boons, they had prayed for some time. The one who was offering them the boon, he wanted to give that, and one who was receiving, he also wanted to receive. दोनों का था मिलन। ये इनकी बात थी, तो ये सही है, दे आर मोर प्योर, ये अच्छे हैं। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी आर, कर्सित बोल रहे हैं, जो श्राप है वो बता रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड व्हाट वी आर, कि ये तो इग्नोरेंट है, इनके पेरेंट्स को कुछ तो मिला, इनके पेरेंट्स का, इनका तो कुछ अपराध नहीं था, इन्होंने मांगा भी नहीं था, दे डिड नॉट सीक एनी कर्स, बट इनके पेरेंट्स को आउट ऑफ इग्नोरेंस कुछ तो मिला श्राप, और जिसके कारण हम यहाँ पे आए हैं। दैट वे हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस बनता नहीं, हमारा कोई मायने नहीं रखता। वी डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंस, वी डोंट हैव एनी वैल्यू एज सच, बिकॉज वी आर नॉट सॉट आफ्टर। हमें किसी ने मांगा नहीं था। तो नाउ वी गो एंड लेट द बून्स, जो भी वर है, उन्हें अपना काम करने दो। तो दैट इज वन। तो अभी वर सामने आ गए, श्राप तो चले गए। तो अगेन दोज बून्स दे आस्क्ड ब्रह्मा कि अभी क्या करें। यहाँ पे तो 2 कंडीशन आ चुकी है। एक कंडीशन है कि इनको अपना अपना राज मिलना चाहिए। तो देयर इज ओनली वन ब्रह्मांड, ओनली वन अर्थ दैट वी आर अवेयर ऑफ। तो फिर ये कैसे 8 के 8 अलग अलग ब्रह्मांड बनाएंगे, अलग अलग पृथ्वी के राज करेंगे? और फिर इनकी पत्नियों का क्या होगा? उनकी भी कंडीशन थी कि अपने घर में रह करके। तो ब्रह्मा ने बताया, एंड नाउ दैट इज वेयर द योग वशिष्ठ's कोर प्रिंसिपल कम्स इन। ओके, ब्रह्मा टोल्ड that you don't have to worry. They, when they were dead, they were in silence,
एक उसको हम कहेंगे सुषुप्ति में, हाँ, डीप स्लीप लाइक स्टेट, दे वर इन दैट डीप स्लीप स्टेट। और उस समय, उसी मृत्यु के बाद ही उन्होंने अपने अपने अलग अलग विश्व निर्माण कर लिए हैं। दे हैव क्रिएटेड देयर ओन यूनिवर्सेस इंडिविजुअली एंड दे आर रूलिंग देयर। एंड वेयर डिड दे क्रिएट these universes? They have created in their own home, so they have started seeing it. अभी क्वेश्चन ये आता है कि एक छोटे से घर में इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे हो सकता है, राइट? ऑल these stories, all these questions, they are now, we have to go and visit in the retrospect. Now we have to come to the original Yoga Vasishtha, and from there we will proceed. The question comes, what is the application of this story? इसका उपयोग क्या है हमारे लिए? कि वर जीते श्राप हारे, तो ये इसका हमें कुछ उपयोग होता है क्या? यहाँ पे मैं अपनी कहानी बताता हूँ जो मैं अपने जीवन में जीता हूँ, और मैं बाकी लोगों को भी ऑफर करता हूँ। एक बात है कि मुझे किसी की कोई श्रद्धा को अफेक्ट नहीं करना है, किसी की श्रद्धा को कोई चैलेंज नहीं करना, इतना तय है। बट देन देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई टेल। एक है कि इसका एप्लीकेशन हम हमारे जीवन में लेके आए। कई बार हम देखते हैं आजू बाजू में लोगों के मन में, खास करके मेनी ऑफ यू आर सीनियर सिटीजन्स, यू हैव seen this, you have experienced this maybe with your friends, your colleagues, around you in when you are in India, right? People are quite a lot afraid of lot of things. वास्तु का है, इसका डर रहेगा। कुंडली का है, उसका डर रहेगा। कोई काली जादू करता है, उसका डर रहेगा। कोई मेरे लिए बुरी नजर लगाता है, उसका डर रहेगा, right? We live in lot of fear many a times, and I have seen many cases कि एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पीपल दे आर अफ्रेड दैट समथिंग समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन टू मी बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ माय माय हॉरोस्कोप, और बिकॉज ऑफ माय वास्तु, माय हाउस, इसका डायरेक्शन ऐसा है वैसा है, एंड समबडी इज हैविंग समथिंग अगेंस्ट मी। ऑल ऑफ दिस पीपल आर अफ्रेड ऑफ। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज कमिंग एज श्राप, with somebody is having bad thoughts or something against you. On the other hand, हमारे पास अगर अपने ईश्वर पे विश्वास है, या जो भी हमारे आराध्य हैं, whomsoever we are devoted to, maybe whether our guru, our god, or whatever, and if we really have a lot of faith in him, that BHIM him, then there is nothing to worry. Like, just live happily, fearlessly, because that is what is going to win. What your thoughts are, what your feelings are, आपकी इमोशंस, आपके विचार जैसे हैं, वैसे ही आपके आजू बाजू में होने वाला है। योग वशिष्ठ ने क्लियर, इस ग्रंथ में क्लियरली बताया है, बिकॉज योर थॉट्स, योर इमोशंस, दे क्रिएट द एंटायर वर्ल्ड फॉर यू, दे क्रिएट एंटायर सराउंडिंग फॉर यू। तो मन में अगर वो भावना रही कि जो मैं कहूंगा, जो मेरे इमोशंस है, जो मेरी पॉजिटिविटी है, वॉट एवर पॉजिटिव थॉट्स आई हैव, दे आर गोइंग टू मैनिफेस्ट, वही मेरे सामने आने वाले हैं। तो फिर कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इस बात का डर निकल जाएगा। ये अलग अलग शास्त्र हो गए, मानता हूँ वास्तु शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, ये सब कुछ है। हाँ, कई सारी तांत्रिक विद्याएं भी होती है। देयर आर लॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड दे मे बी इम्पैक्टिंग, बट दे इम्पैक्ट whom? वन हु इज रेडी टू रिसीव। जो ये कहता है कि हाँ, मेरे ऊपर इसका परिणाम होता है, जैसे ही हमने कहा कि मेरे ऊपर इसका परिणाम होगा, देन यू आर गोइंग टू बी इम्पैक्ट। ऑन द अदर हैंड यू से कि हाँ, कोई कर रहा है तो करने दो, कुछ हो रहा है तो होने दो, बट आई हैव माई फेथ इन माई गुरु, इन माई गॉड, देन नथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट मी, बिकॉज आई एम नॉट रेडी टू रिसीव दिस। श्राप और वर ने यही बात हुई थी। वर ने कहा था कि हमें तो रिसीव करना चाहता था, ही वॉज सीकिंग अस, so that is why he deserves to receive us. फिर आपने कहा इन्होंने तो मांगा नहीं था, we were forced, okay, कर्ज से we were forced to be on him, but he doesn't, he is not supposed to receive us, इसलिए श्राप चले गए। तो हमारे ऊपर ऐसे कई सारी बातें आती होगी, बट आपका विश्वास, अपनी श्रद्धा, वो हमें पॉजिटिवली अगर रखेंगे, पॉजिटिविटी में हम रहेंगे, तो देन दे विल हेल्प अस टू सेल। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। नहीं तो once you lose that faith in that superpower, that परमात्मा ने, that is why we say परमात्मा ने नमः, सबसे श्रेष्ठ गॉड एक ही है, एक ही तत्व है,
उसी को हम नमस्कार करते हैं, उसी में विश्वास रखते हैं। अगर उससे हम विश्वास छोड़ दिए ना, तो देन देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड कि दे आर एंडलेस। क्या-क्या नहीं होता। चलो आज वास्तु करके देखते हैं, वो नहीं हो गया, चलो फिर कुंडली देखते हैं, वो नहीं हो गया, फिर कोई बोलेगा न्यूमरोलॉजी देखो। आजकल तो आई स्टार्टेड सीइंग these ads, okay? They are, I mean, so many things coming. Somebody said, I have studied wristwatches that you wear, okay? And the type of wristwatch decides what is going to be your future. So वो भी बोला है, okay, wristwatch, then clothes, that also will come in picture, what we wear in our ears, nose, whatever, right? These are things, these are the endless things. Do we really want to go and suffer through all this cycle? At least I don't. तो मुझे कई बार कुछ-कुछ बातें आती हैं एंड ऐसे नहीं. I have my God, I have my Guru, I am having my faith. Whatever is offered to me in this life, it is all प्रसाद. एक प्रसाद है भगवान का, उसको जो भी आएगा उसको ले लूंगा, हैप्पीली ले लूंगा. योग Vasishtha will give you this strength. You listen to these sessions. Moreover, you study. You get the books and study. It will give this unshakable power. It will make us so unshakable. अपने को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि कुछ भी हो जाए हम हिलेंगे नहीं, कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए. Okay, so that is what all Yoga Vasishtha can give. There are a lot of things, but this fearlessness is most important thing, and that is what made me leave my job. कि जिसके भरोसे मैंने अपना जॉब छोड़ा और फिर अपना योग वशिष्ठ का करियर शुरू किया. When I left the job, I was around 47. My son was in 10th standard and daughter was in son was in 9th and daughter was in 5th. तो करीब 5 साल हो चुके हैं और इस एज में जहाँ पे अच्छा करियर था, सब कुछ था, वो छोड़ के जब मुझे योग वशिष्ठ के लिए डिवोट करना था, तो नेचुरली एवरीबडी एट होम उनके पास दे हैड अ क्वेश्चन कि हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव. तो आई सेड कुछ ना कुछ कर लूंगा. योग वशिष्ठ हैड गिवन दिस स्ट्रेंथ दैट यू हैव द पावर टू डू व्हाटएवर यू वांट. ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम क्या कहेंगे, अनसक्सेसफुल रहेंगे, सफल नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. एंड देन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशन एक्सेट्रा, बट आई एम हैप्पी. चल रहा है, अच्छा चल रहा है. तो वो फियरलेसनेस योग वशिष्ठ ने दिया था. नाउ कमिंग बैक टू योग वशिष्ठ, हाउ इट स्टार्टेड. योग वशिष्ठ की शुरुआत एक सुंदर से क्वेश्चन से होती है. ओके, और वो क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन भी नहीं, अगर सबसे पहला शब्द देखा जाए तो होता है कि सुतीक्ष्ण नाम का एक व्यक्ति एक अगस्त्य ऋषि के पास आता है और वो अगस्त्य से पूछता है कि जीवन में मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर्म सफिशिएंट है या नॉलेज सफिशिएंट है, राइट? व्हाट इज दैट विच गिव्स लिबरेशन? इज इट ऑल आवर कर्मा, आवर एक्शंस, और ओनली नॉलेज? Now, before he answers the question, I will comment on this one word. That is the first word in Yoga Vasishtha that appears. Sutikshna. What is Sutikshna? It is the intellect. जो बुद्धि है हमारी, वो उस आदमी की थी. उसकी बुद्धि सुतीक्ष्ण थी. सु मतलब अच्छी, तीक्ष्ण मतलब शार्प, right? A good sharp intellect. That is why that question came. How do I get liberated? If I want to have nirvana, how do I get it? Is it only karma, or is it only action, or is it also the knowledge? So अगस्त्य ऋषि उन्होंने कहा कि जैसे हमें किसी पंछी को उड़ने के लिए दोनों परों की आवश्यकता होती है. बर्ड नीड्स बोथ द विंग्स, ही कांट फ्लाई विथ ओनली वन विंग. उसी तरह जीवन में इन दोनों बातों की आवश्यकता होती है. कर्म भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए, और what knowledge भी चाहिए. Now it is very interesting. Okay, just give a thought to this part. If somebody says that I will get only knowledge, so what does it mean? सब छोड़ो, दुनिया घूमो, okay, सन्यासी बनो, keep on wandering and then go from ashram to ashram, Himalayas में जाओ और many other places, acquire knowledge. But then what is the use of that knowledge if you don't apply it? How do you test कि भाई मैंने जो नॉलेज लिया उसका उपयोग है कि नहीं?
अभी आपको सुबह सुबह मैं योग वशिष्ठ सुनाऊंगा 2 घंटे के लिए, ओके, और बाद में अगर मेरे बीवी ने मुझे नाश्ता नहीं दिया, चाय नहीं दिया, देन इफ आई बिकम अपसेट, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नॉलेज, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ब्लैबरिंग? यहाँ पे आके बड़बड़ करना तो ठीक है, पर थोड़ी और सिचुएशन हो गई तो विल आई बी एबल टू सर्वाइव, सस्टेन दैट और नॉट? So that is why knowledge and application, karma भी होना चाहिए उसमें. So without action we cannot live, right? That is one message that sage Vasishtha he had given to Ram. उन्होंने राम को ही बताया था. राम तो एकदम ऐसे अवस्था में चले गए थे पूरा नॉलेज सुनने के बाद, तो वो kept on contemplating and meditating. तो उनको बताया गया था कि योर बॉडी कैन नॉट जस्ट लिव लाइक दैट, एक्शन होना ही पड़ेगा. भूख लगेगी, पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें हिलना पड़ेगा. सो वी हैव टू मूव, गो अराउंड. सो इन द बिगिनिंग ओनली, ऑन फर्स्ट डे आई एम टेलिंग you will acquire knowledge, okay, but just don't keep it assimilated or accumulated with you. Let it come out. वो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें. गो एंड टॉक टू पीपल, ट्राई टू मेक एन इन्फ्लुएंस इन अदर्स लाइफ, राइट? वो हमें दूसरों के जीवन में कुछ तो इफेक्ट लेकर आना है, इसीलिए वो नॉलेज का उपयोग है. हम अगर लेकर बैठे तो क्या फिर जिए? अब देखिए, जितने भी संत हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, श्री राम हो, वशिष्ठ हो, इन लोगों ने नॉलेज दिया है, तो हमें भी जो मिलेगा वो हमको बांटना है, उसी का हमें उपयोग करना है. ये पहला मैसेज ले लीजिए, ठीक है. अब मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कर्म एंड नॉलेज, बोथ ऑफ देम आर नीडेड. तो फिर उन्होंने, अगस्त्य ऋषि ने एक सुतीक्ष्ण को और एक कहानी बताई. वो कहानी थी एक बच्चे की जो गुरुकुल में जाके पढ़ के आया. पढ़कर आने के बाद he stayed at home, and that child who after completing his studies he sat, कुछ नहीं कर रहा था, was doing nothing and just अपने अपने दुनिया में रहता था. तो उसका नाम था कारुण्य और उसके पिताजी he was अग्निवेश्य. तो अग्निवेश्य asked him, son, what is the problem? तुम पढ़ के वगैरह आए हो सब कुछ, now start doing your actions. तो उस बच्चे ने कहा, पिताजी, I heard, I studied and I am confused. मेरा कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं वहां पे जैसे बताया गया कि केवल कर्मों से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, तो आप कितना भी करो, पूजा करो, पाठ करो, जो भी करोगे, संध्या करो, स्नान करो, मंत्र जाप करो, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती. और केवल ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है. लेकिन अगर केवल ज्ञान करूंगा तो फिर मैं, ये सब एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा? ये सब करके सीख के फायदा क्या? मैं ज्ञान करूंगा तो करूँ क्या? मतलब ज्ञान है ठीक है, पर अंदर ही अंदर रहेगा. हाउ डू आई अप्लाई? तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ. हाँ, सी, कहानी के अंदर कहानी, उसके अंदर और एक कहानी. तो वो कहानी बतानी शुरू करी. उन्होंने कहा कि एक सुरुचि नाम की अप्सरा अपने सहेलियों के साथ, अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, वो एक जगह बैठी थी और उसने देखा कि ईश्वर का, इंद्र का कोई दूत ऊपर से जा रहा था. तो उसने उस दूत से पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? उस दूत ने कहा कि मैं अभी एक नॉलेज सुन के आ रहा हूँ. तो सुरुचि ने, उस अप्सरा ने बोला कि बताओ क्या नॉलेज है? उसने कहा कि अरिष्टनेमी नाम का एक राजा था और वह राजा एक गंधमादन नाम का एक पर्वत है, उसके ऊपर तपस्या कर रहा था. काफी साल तक तपस्या करने के बाद, आफ्टर दैट तपस्या, आफ्टर दैट प्रेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट किंग अरिष्टनेमी, ओके, सो इंद्र उसके ऊपर प्रसन्न हो गए. इंद्र ने कहा अपने दूत को कि जाओ भाई, इसको स्वर्ग में लेके आओ. ही इज नाउ क्वालिफाइड टू कम टू द हेवन. तो जाओ उसको लेके आओ. तो वो दूत बता रहा था कि मैं गया अरिष्टनेमी राजा के पास और उसे कहा कि चलो आपका समय हो गया है, आपको स्वर्ग मिलेगा. Now here is a very interesting part, particularly for folks in California. Okay, that king, when he was offered the heaven, he said, "First tell me what is heaven." सबसे पहले बताओ कि स्वर्ग, स्वर्ग तो कहते हैं, बट है क्या स्वर्ग? तो दूत को बड़ा आश्चर्य लगा. He was surprised. That messenger of Indra, he said, everybody who lives here on the earth and whatever he does, he has that desire to go to स्वर्ग. है ना? हम सबको यही लगता है ना. जब नॉलेज में आने से पहले तो हमको, या मुक्ति वगैरह जब पता नहीं थी, तो हमको क्या लग रहा था? हमें लग रहा था कि इफ आई डाई आई शुड गेट द हेवन. मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, वहीं पे मुक्ति है.
तो इसने पूछा कि बताओ मुझे स्वर्ग क्या होता है। तो उस दूत ने, मैसेंजर ने बताया कि स्वर्ग तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वहां पे सब कुछ ब्यूटीफुल है, सुंदर अप्सराएं होती है, सुंदर से बगीचे होते हैं, और लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल देयर। तो अमृत होता है, मृत्यु कभी नहीं होती, इस तरह का सब वहां पे एनवायरमेंट होता है। काइंड ऑफ मार्केटिंग किया उसने अपने स्वर्ग का। तो अरिस्टोनेमी वाज वेरी क्लियर दैट किंग वाज वेरी क्लेवर। उसने पूछा ठीक है, लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव साइड भी होगी स्वर्ग की, वो भी बता दो मुझे। तो देन वो मैसेंजर, उसने कहा कि हाँ, देयर आर नेगेटिव थिंग्स। व्हाट आर दोस? फर्स्ट इज, स्वर्ग इज नॉट परमानेंट। वहां पे गए और हमेशा के लिए वहां पे रुक गए, ऐसा नहीं होता। हेवन इज नॉट परमानेंट। वंस यू गो देयर, जाने के बाद आपके जितने भी पुण्य हैं, राइट, वॉट एवर गुड मेरिट्स दैट यू हैव अर्न, वो इट इज लाइक एन अकाउंट। उनका जितना कोटा रहेगा, जितना वो बैलेंस रहेगा आपका, वो आप कंज्यूम करते जाओगे धीरे धीरे। इट इज लाइक अ बैंक बैलेंस, यू आर विड्रॉइंग कैश। तो जब तक आप स्वर्ग में रह रहे हो, आपका कोटा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो योर बैलेंस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग वंस यू स्टार्ट लिविंग इन हेवन। एंड वंस दैट बैलेंस अकाउंट इज ओवर, इट इज एम्प्टी, तो उसके बाद आपको वापस वहां से पृथ्वी पे भेजा जाएगा। आपका खाता खत्म, वापस कम बैक टू अर्थ। दूसरी बात, वहां पे भी इमोशंस होते हैं। वहां पे अलग अलग लेयर्स हैं। जो एकदम निचले लेयर पे है, वो ऊपर देखता है तो उसको लगता है अरे ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया, हाउ कैन दैट पर्सन बी देयर एट हायर लेवल, ही डजंट डिजर्व, उसको भगवान से कुछ तो गलती हुई है इसलिए उसको ऊपर लेके गया है। और जो बीच में रहता है, उसको भी वही है, उसके ऊपर देखेगा, ही फील्स अरे हाउ कैन ही बी एट हायर लेवल, Recording ही in डजंट डिजर्व टू progress. बी देयर। ऑन द अदर हैंड, नीचे की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि ये तो यहीं पे रहना चाहिए था, इसके बराबर अपनी औकात नहीं, आ गया, इसको सही जगह रखा है भगवान ने। इस तरह से जेलसी, राइट, प्राइड, ये सारी इमोशंस वहां पे आती है। नाउ अरिस्टोडेमी वाज वेरी क्लियर, वेरी क्लेवर एंड वेरी क्लियर। ही सेड दिस इज नॉट व्हाट आई एम प्रेइंग फॉर। इसके लिए मैं तपस्या नहीं कर रहा हूँ कि जाऊं और वो इमोशंस के खेल में फिर भी फंसूं, वहां पे कुछ समय के लिए रहूं, वहां से वापस आ जाऊं। इसके लिए मेरी प्रेयर्स नहीं चल रही थी, मैं तपस्या इसके लिए नहीं कर रहा था। मुझे ऐसी जगह जाना है जहां पे मैं परमानेंट हूँ, और जहां पे ये सारे इमोशनल टर्बुलेंसेस, राइट, दे विल नॉट बी देयर। लेट मी गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज नो कमिंग बैक एंड वेयर देयर इज टोटल पीस। तो इसलिए उसने इंद्र के मैसेंजर को कहा, दूत को कहा कि भाई आप इंद्र का धन्यवाद अदा करिए और चले जाइए, मैं यहाँ पे अपनी प्रेयर कंटिन्यू करता हूँ, आई एम लुकिंग फॉर दैट प्लेस। ऐसा कहने के बाद वो चला गया। आगे क्या होता है उससे पहले एक छोटी सी कमेंट। दिस इज व्हाट हैपेंस विद मेनी ऑफ अस इन आवर लाइफ। वी रियली स्टार्ट ऑफ विद समथिंग व्हिच इज अ ग्रेट ड्रीम। वी वांट टू अचीव समथिंग वेरी हायर, वेरी हाई। हम अपने जीवन में कुछ बड़ी परीक्षा पास करने का सोचते हैं, बड़ा कुछ अचीव करने का सोचते हैं, एंड देन करते करते बीच में ही कुछ तो अट्रैक्शन आ जाता है, एंड देन वी गिव अप। हमको लगता है ये बहुत अच्छा है, बिकॉज वी डोंट हैव क्लियर आइडिया व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो जो भी हमको लगता है अच्छा लगा, वी गिव अप। जैसे एक कोई कैलिफोर्निया में ही कई सारी स्टार्टअप्स आई थी, और अच्छे अच्छे स्टार्टअप होती हैं, बड़ा सा ड्रीम होता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। एंड देन व्हेन दे आर ऑन देयर पाथ, व्हेन दे आर सक्सेसफुल एंड गोइंग अहेड एंड अहेड, देन सम अदर बिग जायंट कम्स एंड दे ट्राई टू अक्वायर। एंड जो स्टार्टअप वाले फाउंडर्स वगैरह थे, दे थिंक हाँ चलो, आई एम गेटिंग गुड compensation, I'm getting a lot of money, so let me drop it here, and they get acquired. In India also, this is what is happening. Question is, why do we really want to give up? Already there are a lot of big companies. Why can't you be so big? Why are you giving up? What is that purpose? What is the reason that you started with? Have you forgotten your dreams? हमने जो सपने देखे थे क्या हम भूल गए? तो यहाँ पे अरिस्टोनेमी का उदाहरण है, वेरी क्लियर, कि मुझे ये अचीव करना है। हमारे जीवन में भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, लाइक स्टूडेंट्स, they are appearing for grade some big high level exams, but then somewhere they get a middle level job, mediocre job, and वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आई एम हैप्पी, चलो मिल गया ना, छोड़ दो। दे फॉरगेट, लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट देयर ड्रीम्स लाइक दिस। यही हो जाता है।
Aristonemi tells us not to forget that. You have aimed for it, you should get it. You should get it. जो आपने सोचा वो मिलना चाहिए. तो ये इंद्र का मैसेंजर गोज बैक टू इंद्र एंड फिर वो पूछता है कि ऐसा ऐसा अरिस्टनेमी ने कहा. तो फिर इंद्र ने कहा कि अगर ऐसा है तो नाउ उसको लेकर जाओ एंड टेक हिम टू ऋषि वाल्मीकि. वाल्मीकि विल नाउ गिव हिम द नॉलेज एंड मेक हिम एलिजिबल टू रिसीव द लिबरेशन. तो जो मुक्ति चाहिए वो मिलेगी वहां. तो वो दूत वापस आया और उसने अरिस्टनेमी को वाल्मीकि के पास लेके गया. वाल्मीकि के पास जाने के बाद वाल्मीकि ने कहा कि भाई बताओ क्या है, व्हाट इज इट दैट यू आर हियर फॉर. देन उसने अरिस्टनेमी ने कहा कि ऐसा ऐसा है. आई एम लुकिंग फॉर दैट नॉलेज जहां पे देयर इज टोटल पीस, देयर इज नो कमिंग बैक. आई वांट टू गो अचीव दैट प्लेस वेयर देयर इज अल्टीमेट प्लेजर. देन वाल्मीकि टोल्ड हिम अ स्टोरी एंड दैट स्टोरी इज नाउ योग वासिष्ठ. हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने रामायण लिखा. रामायण लिखने के बाद ये मेरे शिष्य है भारद्वाज, इन्हें मैंने वो कहानी बताई थी. और उस कहानी के बाद, रामायण सुनने के बाद भारद्वाज वो गए ब्रह्मा जी के पास. आफ्टर डिस्क्राइबिंग रामायण, टेलिंग रामायण टू दिस माय डिसाइपल Bharadwaj, he went to Brahma and he narrated entire रामायण टू ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी ने वो पूरा रामायण सुना एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. उन्होंने कहा कि भाई क्या सुंदर बात लिखी है, कितना सुंदर चरित्र लिखा है श्री राम जी का आपने, कि लोग देखेंगे तो सुनेंगे तो पता चलेगा, उन्हें लगेगा कि हाँ मैं ऐसा जीवन जीऊं. आई वुड एवरीबडी वुड वांट टू बी लाइक राम. तो इस तरह की कहानी तो आपने लिखी है, बड़ी सुंदर है. बट देन दिस इज हाफ जॉब डन. ये केवल आधा ही काम हुआ है. क्यों? क्योंकि ये श्री राम कैसे बने, पुरुषोत्तम कैसे बने, ये जीवन तो उन्होंने जिया, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर तो आपने देखा. वी सॉ द कैरेक्टर ऑफ राम. बट व्हाट मेड हिम राम, व्हाट मेड हिम बिहेव लाइक दिस इन दिस सिचुएशंस, दैट आल्सो शुड बी गिवन टू द पीपल, राइट. राम के जीवन में कई सारी सिचुएशंस आई थी. एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, अ स्मॉल सिचुएशन, दैट ही वाज सपोज टू बी क्राउन्ड, राइट, इन से नेक्स्ट डे. दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था और उससे भी बहुत ऐसा खुश थे, ऐसी बात नहीं थी. ही वॉज हैप्पी, कंटेंटेड. लेकिन सडनली मंथरा केम इन पिक्चर. ही चेंज द माइंड ऑफ कैकेयी. कैकेयी का मन बिगाड़ दिया मंथरा ने. उसके बाद फिर कैकेयी ने दशरथ से कहा कि भाई इसको तो जंगल में जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए, 14 वर्ष वनवास, और मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ. दैट इज व्हाट वाज डिमांडेड बाय कैकेयी, टू सेंड लॉर्ड राम फॉर 14 years वहां पे जंगल में भेजे. तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन राम का? जब कैकेयी के पास गए और कैकेयी से पूछा कि पिताजी बात क्यों नहीं कर रहे, व्हाई इजंट माय फादर टॉकिंग टू मी, वेयर इज ही. तो कैकेयी ने बताया कि हाँ वो तो बहुत उदास है, बिकॉज ही वांट्स टू सेंड यू इन दैट वनवास फॉर 14 years. 14 वर्ष आपको भेजना चाहते हैं, तो इसलिए वो थोड़े उदास है. ही इज नॉट सो श्योर कि किस तरह से बात करें. श्री राम जी ने कहा क्या इतनी सी बात है ना. ठीक, उस सिचुएशन में कोई और होता तो, हमें हमारे लाइफ में देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो क्या एकदम झूम शुरू करे, और आवाज नहीं आ रही तो दिमाग खराब हो जाता है, लैपटॉप को क्या हो गया, नेटवर्क को क्या हो गया, है ना, गुस्सा हो जाते हैं. एंड ही वाज सो अनशेकन विथ सच अ बिग थिंग. द क्वेश्चन इज, इट इज गुड टू सी समबडी इज अनशेकन, बट व्हाट मेड हिम अनशेकन? क्या था वो नॉलेज? कोई और अगर वहां पे होता तो वो तो पूरा हिल जाता कि ये क्या है, कल राजा बनाने वाले और आज जंगल भेज रहे हैं, तो गुस्सा हो जाता. व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट द योग वासिष्ठ. तो भरद्वाज को ब्रह्मा ने कहा कि जाओ वाल्मीकि को बताओ कि वो नॉलेज भी दे, जिससे लोग वो पढ़े सुने एंड देन वो भी अपनी दुनिया इस संसार सागर से निकल जाए. अब इतना बोल के ब्रह्मा जी का खुद का ही समाधान नहीं हुआ. ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिमसेल्फ. वो ब्रह्मा जी से चलो मैं ही आता है. ही केम इन फ्रंट ऑफ वाल्मीकि, टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है, इट इज योर जॉब इज ग्रेट, रामायण बहुत अच्छा है, बट इट इज हाफ डन, कंप्लीट इट. बाकी भी ऐसा नॉलेज दो जिससे लोग इस संसार सागर से निकल जाए. एंड देन ही वेंट ऑफ.
भारद्वाज ने फिर से वही बात वाल्मीकि को बताई, एंड देन वाल्मीकि स्टार्टेड राइटिंग this dialogue between Vasishtha and Ram. That is now termed as Yoga Vasishtha. Yoga Vasishtha is bigger than Ramayana itself. रामायण में 18,000 वर्सेस है, इसमें 32,000 वर्सेस है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज महारामायण, इट इज ऑल्सो नोन एज उत्तर रामायण, वासिष्ठ रामायण, क्योंकि हमने वाल्मीकि रामायण सुना है. दिस इज वासिष्ठ रामायण. इसको मोक्षोपाय संहिता भी बोलते हैं, मोक्ष का उपाय देने वाली संहिता. राइट, दैट इज व्हाट इज आल्सो नोन एज. देयर आर मेनी नेम्स फॉर दिस योग वासिष्ठ. मोर इम्पोर्टेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन, दिस इज योग वासिष्ठ, नॉट योग वशिष्ठ. वशिष्ठ was the name of the sage, but because he has given it, it has come from him. That is why it is वासिष्ठ. संस्कृत में इस तरह से होता है कि किसी ने कुछ दिया तो वो उससे आया है, इसलिए उसका नाम आकर दिया जाता है. राइट, यतीन का बेटा यातीन करके शायद हो सकता है. दैट इज जस्ट एग्जाम्पल कि किस तरह से ये शब्द बनते हैं. तो योग वासिष्ठ. ओके, ऑलवेज रिमेंबर इट इज नॉट. आप कहीं भी इंग्लिश या संस्कृत या हिंदी बुक में अगर पढ़ोगे, विल नोटिस इट इज वासिष्ठ. इंग्लिश में अगर रहेगा तो उस ए के नीचे एक डॉट रहता है, विच टेल्स इट इज नॉट ए, इट इज आ. ओके, दैट वे. तो ठीक है, योग वासिष्ठ इज इट स्टार्टेड कमिंग आउट. सो वाल्मीकि ने बताया कि कहानी यहाँ से शुरू होती है. श्री राम जी, ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट वशिष्ठ's गुरुकुल. वशिष्ठ के गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो घर पे आए एंड अपने पिताजी की परमिशन ली, और आफ्टर सीकिंग हिज परमिशन ही वेंट ऑन फॉर अ तीर्थ यात्रा. घूमने के लिए चले गए. जाकर वापस आए और अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में घूम के वापस आने के बाद अपने घर में बैठे रहे. उस टाइम ये नॉर्म था तीर्थ यात्रा करने का. तो नॉर्म इसलिए था कि वॉट एवर वी एजुकेशन वी टेक, whatever education we get in our schools, universities, whatever, right? It is all theory. वो सब केवल theory होती है. जीवन, the life is totally different from the theory. The reality is different. So उस समय ये प्रोटोकॉल था कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करें और फिर दुनिया देख के आए व्हाट इज हैपनिंग, पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रिंसेस. राइट, राजकुमार हो तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द किंग्स इन फ्यूचर. It was very important to go and mix with the public. जाके देखो लोगों के साथ कि उनके मन में क्या चल रहा है, राज की समस्या क्या है, पड़ोस के राज्यों की समस्या क्या है, उनके पॉजिटिव्स क्या है, उनके नेगेटिव्स क्या है. सो ऑल दैट लर्निंग, व्हाट आर द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, ये सब सीख के देन कम बैक, एंड आफ्टर कमिंग बैक देन यू पॉन्डर ओवर इट, उसके ऊपर विचार करो और फिर अपनी अगली स्ट्रेटेजीज डिसाइड करो. तो ऐसे ही राजमहल में बैठ के राजा नहीं बन सकते, आपको लोगों में मिलना होता ही है. यही बात चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को कही थी कि एजुकेशन पूरा हो गया बट इसके बाद जाके घूम क्या. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज भ्रमण. व्हाट इज भ्रमण? भ्रमण का मतलब ये भी बताया गया है कि भ्रम को न करना. हम जो जी रहे हैं, जो हम इंप्रेशंस में जीते हैं अपने घर में बैठ के, दैट इज एन इल्यूजन. तो रिमूव इट इज भ्रम निराश, इट इज भ्रमण. इसलिए उसका इंपॉर्टेंस होता है. घूमना मतलब भ्रमण तो बहुत आवश्यक होता है कि गो एंड मिक्स इन द पीपल. हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर घर में बैठे रहे, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक देखे रहे, हम लगता है कि हम काफी कुछ समझ रहे हैं. इट्स दैट्स नॉट द रियलिटी. वी हैव टू गो एंड मिक्स इन द पीपल, फिजिकली जाके देखिए दुनिया में. दैट्स द डिफरेंस. तो उनका भ्रमण हो गया और आने के बाद देन ही बिकेम समहाउ स्लोली डिस्पैशनेट. दुनिया में किसी बात में उनको रस ही नहीं रहा. एक राजकुमार थे, आजू बाजू में नाच गाना वगैरह सब चल रहा था, रोज का अच्छा खाना था, पूरा प्रोटोकॉल सब था, बट ये पूरी तरह से लॉस्ट रहते थे. इतने लॉस्ट कि उनको कहना पड़ता था कि श्री राम जी चलिए नहाना है, श्री राम जी चलिए खाना खाना है, श्री राम जी चलिए इधर घूमते उधर घूमते. कुछ जो एसेंशियल बातें थी उसी में उनका इंटरेस्ट था, बाकी किसी में भी उनका इंटरेस्ट नहीं था. बस ऐसे बैठे रहेंगे, अपने आप में विचार करेंगे कि ये दुनिया बस झूठी है, ये सब कहीं भी आनंद नहीं है, सब लोग दुख के लिए भाग रहे हैं, पता नहीं लोग क्यों जीते हैं, वगैरह वगैरह. ऐसे थॉट्स ऑन दीज लाइंस ही वाज वंडरिंग. अब ऐसे विचार आते आते
दशरथ महाराज ने देखा अपने बेटे को, he saw his son is lost somewhere. तो दशरथ asked, what is the problem? Why are you lost like this? राजकुमार है ना, अयोध्या के चक्रवर्ती, अपने बेटे के बारे में तो हो गई. And what can be a problem for a king, for a prince of Ayodhya? Nothing. बट फिर भी वो ऐसे पड़े हैं. तो एक 16 साल के बच्चे को अगर हम पूछें एज अ फादर, आई नो कि क्या होता है, तो वो बोलता है दे डोंट शेयर सो इजीली ना, दे डोंट ओपन अप. नहीं, इट्स ऑलराइट, आई एम गुड, सब ठीक चल रहा है. तो देन दशरथ आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू वशिष्ठ कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विथ राम, बताइए क्या गड़बड़ है, क्या हो रहा है. तो वशिष्ठ ने सोचा थोड़ी देर एंड देन ही सेड कि इट्स ओके, राम इज नॉलेजेबल. तो उनके जीवन में अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग बिग कमिंग अप. ओके, so that is what their vision is. This is what the rishis are. क्या कहते हैं कि नथिंग टू वरी, कुछ तो अच्छा होने वाला है. इस दुनिया में जब भी कोई बड़ी बात होने वाली होती है तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है. दैट इज व्हाट इज देन गोइंग टू रिफ्लेक्ट. तो ऐसा कुछ छोटा मोटा इधर होने वाला है, तो डोंट वरी, समथिंग बेटर इज गोइंग टू कम आउट. एंड देन द मैटर वाज लेफ्ट देयर. देन वन डे, एज वी नो, विश्वामित्र ऋषि ही कम्स टू दशरथ कोर्ट. विश्वामित्र ऋषि आते हैं. उनके आने के बाद महाराज दशरथ उनका बड़ा स्वागत करते हैं और उत्साह में बोल जाते हैं. क्या कहते हैं कि विश्वामित्र जी, आपके चरणों में मेरा पूरा जीवन समर्पित है. आप यहाँ पे किस कारण से आए हैं मुझे बताएं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा. आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा. मेरा पूरा जीवन, तेरा पूरा राज आप ही के लिए है, आप जो चाहिए मांग लीजिए. बस विश्वामित्र बड़े खुश होते हैं और वो कहते कि हे राजन, आपसे ही यही उम्मीद कर सकता था, आपसे ही ये अपेक्षा कर सकता था कि आप, मैं कुछ मांगू और आप दे. हे किंग, ओनली यू कैन ऑफर मी व्हाट एवर आई वांट. नाउ प्लीज डू मी अ फेवर. राइट, आई एम परफॉर्मिंग ऑल दिस यज्ञ होम. राइट, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, योग होम करता हूँ, यज्ञ करता हूँ. मैं तो एक साइंटिस्ट ऋषि हूँ. तो मुझे इन यज्ञों में ऑल दीज डेमंस, खर, दूषण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे रावण के राक्षस है. दे आर ब्रिंगिंग इन ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं लेकर आते हैं, और इसलिए मैं अपना यज्ञ पूरा नहीं कर पाता. तो मैं तो एक ऋषि हूं. आई कैन नॉट गो एंड फाइट विद देम, बिकॉज इफ आई स्टार्ट फाइटिंग विद देम, इफ आई बिकम एंग्री, देन व्हाट एवर मेरिट्स आई हैव अर्न, दे आर गॉन इन वेन, वो चले जाते हैं. तो एक ऋषि को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए. और इसके लिए विश्वामित्र ने कहा कि मैं उनसे लड़ नहीं सकता. नाउ इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मी, तो प्लीज सेंड राम विथ मी. ये बात जैसे ही विश्वामित्र ने दशरथ से कही कि आप उन राक्षसों को मारने के लिए और मेरा संरक्षण करने के लिए राम जी को मेरे साथ भेज दीजिए, दशरथ के पैर के तले जमीन खिसक गई. वो बोला, अरे राम को कैसे भेज सकता हूँ, ये तो अभी अभी आया है और अभी भी भेज दूं. दूसरी बात, राम तो एक बच्चा है, इज अ किड, छोटा सा है. हाँ, ही हैजंट फॉट एनी वॉर सो फार. धनुष अभी पकड़ा है तो इधर उधर की छोटी मोटी लड़ाई की होगी. हाँ, एक second. तो ही कांट गो एंड फाइट एनी वॉर, उनके उनसे तो नहीं होगा. आप चाहिए तो मेरी पूरी सेना ले जाइए, आप चाहे तो मैं आता हूं आपके साथ. इफ यू वांट आई विल कम, यू टेक माय एंटायर आर्मी, बट नॉट राम. राम को ले जाकर आप कैसे ये कर सकेंगे ना, कैसे वो कैसे लड़ पाएगा, उसकी तो एबिलिटी नहीं है. तो देन व्हेन ही वाज टर्निंग अवे फ्रॉम हिज प्रॉमिस, विश्वामित्र बिकेम एंग्री. उन्होंने कहा कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हो, अभी तो बोल रहे थे 2 मिनट पहले कि पूरा जीवन मेरा हाजिर है, मेरा पूरा सब कुछ आपके लिए है, एंड मैंने बस राम को मांगा तो बोले नहीं दे सकते. यू आर फ्रॉम दैट लीनिएज जहाँ पे रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए. राइट, यू यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस. अगर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आई विल गो, डोंट कीप योर प्रॉमिस. एंड ही पॉइंटेड टू वशिष्ठ, प्लीज टेल हिम व्हाट राम इज. ये ऐसे डर रहा है कि जैसे कुछ है ही नहीं राम में. तो देन वशिष्ठ केम इन बिटवीन. उन्होंने दशरथ को समझाया. क्या समझाया कि राम इज स्पेशल, वन, एंड सेकंड, यू डोंट नो व्हाट विश्वामित्र इज. विश्वामित्र के पास सारे वेपन सब कुछ है. सो ही इज ग्रेट साइंटिस्ट. व्हेन राम गोज विथ हिम,
राम विल बी बेनिफिटेड, तो उसको जाना आवश्यक है। चिंता मत करो राम की, विश्वामित्र जी के पास कुछ नहीं होगा। एंड देन फाइनली दे अग्रीड एंड सेड कि चलो राम जी को बुलाया जाए और बोलो रेडी हो जाए जाने के लिए। तो राम जी का असिस्टेंट वहां पे था। ही सेड, दशरथ को उन्होंने कहा, द असिस्टेंट ऑफ राम, अटेंडेंट ऑफ राम, ही सेड हाउ कैन राम गो एनीवेयर, यू नो व्हाट इज सिचुएशन इज, आपको पता है कैसे है उनकी हालत, वो तो इतने निस्तेज हो चुके हैं, इतना उनका पूरा बल जा चुका है, पूरा चार्म जा चुका है, देयर इज नो चार्म, नो एनर्जी इन हिम, हाउ कैन ही गो एंड फाइट अ वॉर, ही कांट गो। तो इसके ऊपर विश्वामित्र ने कहा, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। अरे ऐसे ऐसे है, ही कंटिन्यूअसली ही इज लॉस्ट समवेयर एंड ही हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड। मतलब इट इज अ गुड न्यूज, there must be some good thing that is coming up, because a person like Ram cannot just go into this situation just like that. तो उनको बुलाया जाए। तो बोले कि ठीक है, जाओ अब मैं लेके आता हूँ, उनको लेकर आओ, ऐसा अटेंडेंट को बोला गया। while attendant started walking off, suddenly उसी समय राम एंड हिज ब्रदर्स दे ऑल केम एंड वहां पे आ गए। आने के बाद उन्होंने सभी को प्रणाम किया एंड देन वहां पे बैठ गए। आने के बाद दशरथ ने कहा कि पुत्र आओ बैठो मेरे बाजू में। तो राम जी ने विनम्रता से कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे जमीन पे बैठता हूँ। और आप ये पिक्चर देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, तो वशिष्ठ ऋषि एक तरफ है, श्री राम जी नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं। हाँ, आसन पे नहीं है, क्योंकि इट इज ऑल्सो कॉल्ड उपनिषद। उपनिषद इज राइट, उप इज सिटिंग क्लोज टू द मास्टर टू रिसीव दैट नॉलेज ऑफ अल्टीमेट, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज उपनिषद। तो वहां पे उनसे नॉलेज लेने के लिए नीचे बैठ गए थे। तो वहां पे इस तरह से बात होने के बाद विश्वामित्र ने पूछा कि हे राम जी, क्या प्रॉब्लम है, बताइए। एंड देन was राम सेड कि बिकॉज पीपल लाइक यू आर आस्किंग, राइट, इट इज माय ड्यूटी। देखिए, पिताजी को नहीं बोला था। व्हेन फादर आस्क्ड व्हाट इज द प्रॉब्लम, ही सेड नो, नथिंग। बट व्हेन अ सेज आस्क्ड, व्हेन अ ऋषि आस्क्ड, यू हैव टू देन ओपन अप योरसेल्फ। ऋषि के सामने कुछ छुपाना नहीं है। ओके, ओपन अप एवरीथिंग। तो उन्होंने जाके बोल दिया कि हाँ, व्हेन पीपल लाइक यू आर आस्किंग, आई हैव टू टेल एंड आई हैव टू ओपन अप माई सेल्फ। आपने जो बोला वो मैं आपको बताता हूँ, जो पूछा उसका उत्तर देता हूँ। यहां से योग वशिष्ठ का वैराग्य चैप्टर शुरू होता है। वैराग्य इज डिस्पैशन, राइट। नाउ देयर इज अ कैच। मैं आपको ये बताना शुरू करूंगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट नेक्स्ट सेशंस यू अटेंड। आज शायद हम पूरा चैप्टर या उसके पूरा योग वशिष्ठ का तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स वी हैव 7 सेशंस, बट वैराग्य, दैट डिस्पैशन, दैट चैप्टर इज सच that once you listen to it, then we also are supposed to get into dispassionate state. हमें भी वैराग्य आ सकता है। बट ये वैराग्य श्री राम जी का वैराग्य था। ओके, वो वैराग्य हमारे अगर अंदर आता है तो एक रिस्क ये है कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाए। मतलब मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन उसके पीछे केवल एक क्या थोड़ा फन का एस्पेक्ट है, मजाक का एस्पेक्ट है, तो प्लीज उसमें क्रोध मत करिएगा। कि शाम को अग्रवाल साहब को आज पनीर खाने की इच्छा हो रही है और वीणा जी ऐसे बैठ गए कि क्या अग्रवाल साहब, पनीर, और सब वैराग्य है, जीवन में कुछ बचा नहीं है, क्या खाएंगे पनीर और क्या खाएंगे चावल और राजमा, है ना। अगर वीणा जी का वैराग्य आ गया तो अग्रवाल साहब तो खाली पेट रह जाएंगे या फिर जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैराग्य ये एक्टिव वैराग्य है। इसलिए बताना चाहता हूँ कि श्री राम जी को वैराग्य था, उनका वैराग्य सुनिए जरूर, बट एंड में ये ध्यान में रखिए कि वो आज हम उनको पुरुषोत्तम जानते हैं। आज श्री राम जी का नाम लिया तो हमारे अंदर एक चेतना आती है, हाँ, वी बिकम वेरी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। तो वो उनका एंड था। तो अभी ये केवल शुरुआत है, तो हमें एंड ध्यान में रखना है, वरना शुरुआत पकड़ के उधर ही बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो आगे का भी जो भी है, वॉट एवर इज द रिमेनिंग पोर्शन, यू हैव टू अटेंड दैट आल्सो ना, सो मेक श्योर दैट। श्री राम जी सेड, उन्होंने बताया कि वॉट एवर आई हैव सीन सो फार, पीपल आर बॉर्न हियर टू बी हैप्पी एंड फ्री। हम सबको यही चाहिए जीवन में। हम जो भी करते हैं, हमें आनंद चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, बस उसी के लिए हम करते हैं। कुछ भी करिए, सेशन भी मैं दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसमें भी कहीं तो एक अपेक्षा है कि अरे सुन के आनंद मिलेगा। मुझे भी लगता है कि बात करके आनंद मिलेगा,
इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, राइट? तो फ्रीडम चाहिए कि मैं जो भी चाहे वो कर सकूं। मेरे लाइफ में जो भी मुझे अचीव करना है, मैं इधर उधर घूमना है, खाना है, पीना है, जहां पे भी जाना है, सब कुछ कर सकूं, नो बॉन्डेज। दैट इज व्हाट एवरीबॉडी डिजायर्स। नाउ व्हाट डू वी डू फॉर दैट? इन समरी, ऑफ कोर्स राम जी एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट उसका अगर एक छोटा सा क्या समरी बताई जाए, तो ही सेड व्हाट एवर वी डू, राइट, टू गेट दैट प्लेजर is not giving us the pleasure endly. I mean, ultimately, right? We have to keep on working on again and again and again. Every day you have to get up and run after something to seek that pleasure. कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है कि जिससे मुझे खुशी मिले. आज पनीर खाया तो खुश हो गया, बस ऐसा लगता है. खाने से पहले लगता है कि आज अगर पनीर मिल जाए ना जिंदगी बन गई. दैट इज व्हाट वी से. लेकिन खाने के बाद क्या होता है? दूसरे दिन, तीसरे दिन, 8वें दिन, अरे यार और एक बार पनीर चाहिए, और एक बार गुलाब जाम चाहिए, और एक बार ये चाहिए, है ना? दैट डिजायर इट नेवर एंड्स. एंड देन उसके लिए फिर से वो जो क्रेविंग आता है, अगेन दैट क्रेविंग कम्स एंड फिर वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. So Ramji said very nicely, very aptly, that these desires never end and we keep on asking for it again and again and again. अब इसके बाद ये खत्म तो नहीं होता, तो चलो लाइफ में कभी खत्म होता है क्या? वो भी नहीं है. वी कीप ऑन आस्किंग फॉर इट टिल द एंड ऑफ लाइफ. एंड बिकॉज द डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो मृत्यु के समय वो आधी आधी अधूरी इच्छाएं लेके एट द टाइम ऑफ डेथ विद अनफुलफिल्ड डिजायर्स वी डाई. एंड नेचर्स रूल इज योर डिजायर्स विल हैव टू बी फुलफिल्ड. सो क्या होता है? आपकी इच्छा पूरी करनी ही है, ये निसर्ग का नियम है. तो फिर से जन्म दिया जाता है. अगेन वी टेक अनदर बॉडी. वी डोंट नो व्हाट बॉडी वी टेक. ओके, इट मे बी ऑफ हॉर्स, इट मे बी ऑफ कॉकरोच, इट मे बी ऑफ ह्यूमन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. तो उसके बाद फिर से जीवन जिया गया. एंड अगेन देयर आर डिजायर्स, अगेन कीप ऑन क्रेविंग. So this is an endless cycle. Now, very intelligently he puts it. श्री राम जी ने बड़ी दिमाग की बात कही है. कहा कि ये ऐसा जीवन जीने में मतलब नहीं. उन्होंने कहा कि इज दिस लाइफ दैट यू कीप ऑन रनिंग 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 आफ्टर समथिंग फॉर हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस. वो आता ही नहीं है. मरो, फिर से जियो, फिर से जीवन पाओ, फिर से चालू रखो. So, a technical person like me, I typically, if I find a task that is to be done again and again, what do? I automate it. है ना? उसको ऑटोमेशन कर देते हैं हम लोग. टीवी उठ के बार बार बंद करना दिमाग में, मतलब वी गेट टायर्ड ऑफ इट. रोज उठ के जाओ, बटन दबाओ, इसका ऑन करो, ऑफ करो. वी ऑटोमेट. यहीं पे बैठे बैठे एक बटन दबा दिया, टीवी ऑन, बटन दबाया, टीवी ऑफ. रिमोट कंट्रोल हमने ऐसे ही इन्वेंट किया. तो ऐसे ही बात उन्होंने कही कि ये क्या है, ये मतलब नहीं है. तो मुझे ऐसी लाइफ ही नहीं जीनी है. आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ वेयर आई हैव टू कीप ऑन रनिंग फॉर हैप्पीनेस. नाउ ही सेड, बट राइट, यू आर द ग्रेट पीपल. I see you all always smiling, and you are acting, you are working. Like Vishwamitra is still working for something. Vasisht is still here. He still gives knowledge, guides, etc. So then you have a reason to live. I don't find a reason to live, but you have a reason. Now, what is that? What you have, you should give it to me. जो आपके पास है, वो नॉलेज आप मुझे दीजिए. वो नॉलेज ऐसा दीजिए कि जिससे मैं जहां पे भी हूं, राइट, आई मे बी एट एनी प्लेस, आई मे बी इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में रहूं, विदाउट एनी टूल्स, कोई भी किसी भी चीज के बगैर, एट एनी टाइम, किसी भी समय, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ डे नाइट और वॉट एवर आर द सिचुएशंस अराउंड मी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, आई शुड बी एबल टू कीप माई सेल्फ हैप्पी. दुनिया में कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, किसी भी चीज के बगैर मैं अपने आप को आनंद में रख सकूं. और वो ऐसा आनंद होना चाहिए कि एक बार मिल गया तो बस लाइफ टाइम्स के लिए मिल गया. वापस उसके लिए झगड़ने की जरूरत नहीं कि फिर से उसके लिए कोशिश करो, ऐसे जरूरत नहीं होनी चाहिए. इस तरह का आनंद आप मुझे दो. दैट इज व्हाट ही सॉट. योगेंद्र जी, 10 मिनट्स है ना मेरे पास अभी, उसके बाद फिर हमको ओपन करेंगे. ओके. तो ऐसी बात उन्होंने कही कि इस तरह का आनंद मुझे दे दीजिए. ये कौन मांग रहा है? ही इज द प्रिंस ऑफ अयोध्या. हाँ, उनको सब कुछ मिल रहा है. मैंने जैसे कहा कि आज रात को अगर पनीर नहीं मिला तो हमारा गुस्सा हो सकता है,
उनको तो अभी मिल रहा था, हमें पनीर नहीं मिला तो लगता है यार लाइफ फालतू है, बस क्या पड़ा इस लाइफ में, कुछ नहीं। उनके पास ऐसा था कि जो भी चाहिए सब कुछ मिलता था, तो भी वैराग्य आया। क्यों आया? दैट इज आउट ऑफ नॉलेज, दैट इज सात्विक वैराग्य। आउट ऑफ नॉलेज उन्होंने क्या कहा? उनका वैराग्य इसलिए था, उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने देखा लोगों को वो खुशी पाने के लिए, आनंद के लिए क्या क्या करते हैं। पहली बात तो है कि पैसा, पैसे के पीछे भागते हैं। कितना भागते हैं? इतना भागते हैं कि अपनों तक छोड़ देते हैं। इतना भागते हैं कि अपने लोगों से धोखा भी करते हैं, दुश्मनी भी ले लेते हैं, फंसाते हैं, चीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। और उन्हें लगता है कि बस पैसा 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 मिल गया तो हमें आनंद मिल जाएगा। आज देखिए, जिनके पास पैसा है, जो अपनों से दूर जा चुके हैं, जिन्होंने अपनों को फंसाया है, जो कुछ भी किया है, आर दे हैप्पी? तो वो खुश नहीं है। हाँ, ये हम उन्होंने उनके कॉन्टेक्स्ट में बताया था, इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। और ये लक्ष्मी का स्वरूप, लक्ष्मी इज दैट, इट इज व्हाट, गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो लक्ष्मी का स्वरूप कैसे है? व्हाट इज द नेचर ऑफ लक्ष्मी? शी इज चंचल, एक जगह नहीं रहती, राइट? शी इज कंटिन्यूअसली मूविंग। तो उसको तो एक जगह पकड़ के रखना भी मुश्किल है। एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ सिचुएशंस। इजराइल लीजिए, इजराइल एंड हमास, दैट वॉर इज गोइंग ऑन, राइट? सो एवरीथिंग वाज गुड, बट आउट ऑफ नोवेयर सडनली कुछ तो हो गया, रॉकेट्स फायर हो गए, ये हो गया। एंड देन maybe many people lost their wealth also, many people lost their lives, but wealth also. तो क्या हो गया? पैसा तो एक दिन ऐसा इधर को उधर हो जाता है। तो इज दैट लक्ष्मी वर्थ ऑफ परसिंग? लक्ष्मी के पीछे भागने में मतलब है क्या? मुझे नहीं लगता। जो चीज बदलने वाली है, जो चीज निकल जाने वाली है, उसके पीछे क्यों लगे? देन उन्होंने कहा कि आदमी क्या करता है सुख के लिए? वो औरत के पीछे भागता है, स्त्री के पीछे भागता है। नाउ दो उस टाइम के कल्चर में, या उस टाइम के स्क्रिप्चर्स में, या हमारे स्क्रिप्चर्स में एक स्त्री को नेगेटिवली दिखाया गया है एज अ मैटर ऑफ अट्रैक्शन एंड मटेरियल, दैट्स व्हाट पीपल, आई मीन मेन लुक एट, बट इट इज बोथ दिस। आज हम देखते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ उसी तरह से देखे जाते हैं, ठीक है? तो इट इज लाइक अपोजिट जेंडर, यू वांट टू हैव प्लेजर। क्या बस मैं पुरुष स्त्री में सुख देखता है, स्त्री पुरुष में सुख देखती है, राइट? अ मैन लुक्स फॉर प्लेजर इन वुमन एंड वुमन लुक्स फॉर प्लेजर इन मैन, बट देन इज देयर रियल प्लेजर? हाउ लॉन्ग कैन इट सस्टेन? इज दैट कि एक बार दो बार वो सुख ले लिया, यू हैव गॉट दैट प्लेजर एंड देन यू आर परमानेंटली हैप्पी? इट डजंट हैपन सो। इनफैक्ट जिसके पीछे हम पागल होते हैं, वेयर वी सीक दैट प्लेजर, दैट सेम बॉडी एट वन पॉइंट इन टाइम, वो शरीर एक समय ऐसा भी हो जाता है वेर वी डोंट वांट टू टच, उसको हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं होती, सिर्फ थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं। इतना उसमें चेंज हो जाता है। सो इज दैट गोइंग टू गिव यू अस परमानेंट प्लेजर? अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि वो सुख, वो डिजायर जो होती है, जो भी सेक्स की डिजायर हो या लस्ट हो, दैट डाइज? Hard fact is, irrespective of the age, people are still looking for that pleasure. That is why many crimes happen. वो 70 years हो, 80 years हो, that pleasure is, that seeking is still there. तो बोलते कि वो भी, it is not giving us that happiness. See, any craving, is it allowing us to to sit silent? No. It keeps us, it makes a monkey, right? हमको कूदना पड़ता है, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ तो दिमाग में कीड़ा चालू रहता है, continuously this mind is wandering. That is why he comes to that mind. He comes to that Krishna, that desire. बोलते हैं डिजायर भी हमें शांत नहीं बैठने देती। एक मंकी की एक तरह, एक बंदर की तरह, that desire keeps on moving us everywhere. If not externally, internally, within us, we are continuously roaming for something. तो ये तृष्णा भी हमें शांति से नहीं बैठने देती। मन का स्वभाव ऐसा है कि वो भी भागते रहेगा, कंटिन्यूअसली इधर उधर कुछ ना कुछ प्लेजर देखेगा। अच्छा, is there a guarantee that today I don't get something, but tomorrow I might get something? So who has seen tomorrow? That has happened with me when I was in my corporate job with Cisco, and I have been into spirituality for a long time. I was paying my attention into these things. तो मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि यार ये क्या स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन एंड सोशल सर्विस एक्सेट्रा ये लगा के रखा है, यू आर देखी, यू शुड वर्क डे एंड नाइट, पैसा कमाओ, ऐश करो, उसके बाद फिर जब रिटायर हो जाओगे आफ्टर द एज ऑफ 60 यू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। So because I was reading Yoga Vasishtha, I could say
कि भाई रिटायर होने की गारंटी तो आप लोग को है. Of the you are sure, right, that you will be reaching the age of 60, and after that you are so sure that you will be able to do a lot of things. I'm not so sure about my age, about my life. I don't know if anybody is anyway sure about anybody's life. कि सबको गारंटी है कि नहीं पता नहीं, पर मुझे गारंटी नहीं कि लाइफ कब इधर की उधर हो जाए. हाँ. तो what I want to do in this life is I will try to do right from today. जब मेरे अंदर एनर्जी है, ताकत है, तभी से मैं कुछ करना चालू करूंगा. 60 साल के बाद पता नहीं मेरे में उतनी ताकत रहेगी कि नहीं रहेगी. ये आईटी का जॉब इतना स्ट्रेनियस है कि वो तो मेरा पूरा निचोड़ के सब कुछ निकाल लेगा, राइट. इट विल एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग आउट ऑफ मी, एंड आफ्टर आई रिटायर ऑफ द आईटी जॉब, चांसेस आर दैट आई वुड बी टोटली एग्जॉस्टेड. मेरे पास कुछ नहीं रहेगा. तो आई एम नॉट श्योर ऑफ टाइम. श्री राम जी ने यही बात कही थी कि पीपल प्लान सो मेनी थिंग्स, सो दे डू सो मेनी थिंग्स, दे टेक एनिमिटी ऑल्सो. बैर भी ले लेते कि तेरे से जिंदगी भर बात नहीं करूंगा. लेकिन क्या, किसकी जिंदगी भर, अपनी या उसकी, कितनी जिंदगी पता है. उसी को बोलो भाई कल तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तो सारे लोगों से दुश्मनी खत्म कर देगा, बोलेगा माफ कर दो, गलती हो गई, है ना. बट इंटरेस्टिंगली वी आर नॉट अवेयर. वी नो बट वी आर नॉट अवेयर कि लाइफ कब खत्म हो सकती है. तो उन्होंने यही कहा कि इस टाइम का भरोसा नहीं. तो आज नहीं कल खुशी मिलेगी, कल आनंद होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं. तो व्हाई टू लिव, क्यों जीव, दैट इज व्हाट हिज क्वेश्चन इज. देन उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं कि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में हैप्पीनेस होता है, राइट. इफ यू लुक एट अ चाइल्ड, बच्चा अगर हो, उसको, बच्चे को, हमको लगता है कि बचपना सबको लगता है ना, द चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ, वी फील, राइट. एवरीबडी अग्रीज. नाउ लिसन टू श्री राम. ओके, he says if you look at the child, that is the most miserable part of the life. Okay, why? कि वो बच्चा जब छोटा है, एकदम छोटा है, तो उसको तो कुछ कहना है तो ही कांट स्पीक. भूख लगी तब भी रोना है, गैसेस हुई तब भी रोना है, ठंड लग रही तब भी रोना है, गर्मी हो रही तब भी रोना ही है. ही कांट टेल एनीथिंग. नाउ व्हाट इज ही फीलिंग, व्हाट इज हैपनिंग टू हिम इज टोटली डिपेंड अपॉन हिज मदर्स इंटरप्रिटेशन. मदर अगर बाहर से जिम विम जाके आई, जॉगिंग करके आई, वो पसीना पसीना हो रही है और बच्चे को ठंड लग रही है, तो क्या करेगी. इसको लग रहा है कि बच्चे को गर्मी हो रही है तो उसके कपड़े उतार देगी, बच्चे को तो ठंड लग रही है. पर इसको क्या लग रहा है, मदर व्हाट शी फील्स, शी वुड डू दैट. बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है, इसको लग रहा है कि अरे उसको गैसेस हो गए, तो उसको कुछ हिंग लगाएगी, बीड़े का पान रखेगी, कुछ करेगी. नाउ इट इज अगेन राम जी सेज हाउ कैन दिस सिचुएशन बी सो प्लेजरफुल, कि जो दूसरों के इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. आज तो हम बोल भी सकते हैं, उस समय तो वो बोल भी नहीं सकता. थोड़ा बड़ा हो गया तो पेरेंट्स का डर रहता है, पेरेंट्स बोलेंगे पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, तो अगेन उसका प्रेशर रहता है. हाउ कैन ऑल दिस बी गारंटीड, हाउ कैन ऑल दिस बी सेड टू बी हैप्पी. फिर देन यू ग्रो अप, यू बिकम यंग. इन यंग एज क्या होता है, वी आर कैप्चर्ड बाय लस्ट, एरोगेंस. हमें बहुत ताकत होती है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम दूसरों का आदर नहीं करते, वी डोंट रिस्पेक्ट अदर्स. So this time, which is the foundation of our entire life, the young age, people are lost into so many confusions, lust, and so many things. That is all wiped out. तो सब पूरा समय हमारा चला जाता है, तो उसमें हम कैसे गारंटी कह सकते हैं कि ये भी एक हैप्पीनेस का पीरियड होता है. एंड देन एडल्टहुड एंड ओल्ड एज स्टार्ट, कि जहाँ पे तो कुछ संभव होता ही नहीं है. ओल्ड एज में हम कई बार दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. जब तक स्ट्रेंथ है तब तक ठीक है, लेकिन कभी वो फेयर रहता है कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो एंड उसमें उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती कि हम सब कुछ कर सकें. तो वहां पे प्लेजर ले नहीं ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट. इट इज ऑल इन माइंड. आई सी ऑल ऑफ दीज. मुझे बताया गया था कि यहाँ पे काफी ओल्डीज है, बट आई डोंट सी एनी ओल्डी. यहाँ पे सब लोग इतने चार्मिंग और सब हैप्पी है, तो आपको ओल्ड नहीं कहा जा सकता किसी भी एंगल से. अग्रवाल जी को तो मैंने कहा था, आपसे बात कर रहा था, तो आपकी आवाज सुन के मुझे नहीं लगा कि आपकी एज इतनी है. 80 करके उन्होंने बताया, मुझे लगा चलो 50-55 के कोई होगे करके. तो ऐसी तो दैट हैप्पीनेस इज देयर विथ यू, तो प्लीज डोंट टेक इट दैट वे. आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल. तो उस एज में भी हैप्पीनेस कहाँ से आएगा, ऐसा श्री राम जी का क्वेश्चन था. तो उन्होंने कहा लाइफ के किसी स्टेज में भी हैप्पीनेस नहीं है. कल हैप्पीनेस मिलेगा इसकी उम्मीद करना भी फालतू है. और किसी चीज से
हैप्पीनेस मिलेगा, ये भी नहीं। नाउ द फाइनल स्टेटमेंट ही मेड, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो आई एम नाउ फीलिंग होपलेस। लाइफ में कहीं पे भी कुछ भी आनंद मिलेगा इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं लगती। एंड दैट इज व्हाट पीपल आर बॉर्न फॉर, दैट इज व्हाट आई एम बॉर्न फॉर। मैंने इसलिए जन्म लिया है कि मुझे आनंद मिलेगा, पर अगर भी वो होप्स चले गए तो आई डोंट वांट टू लिव। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करता, बट जीवन जीने के लिए कुछ जिया जाए, जीवन जिया जाए इसके लिए भी कुछ होगा, कुछ कारण है, ऐसा भी मुझे नहीं दिखाई देता। Committing suicide is a sin. That is why I am now. That is why I will not commit suicide. That's what he said. But then there is no reason to live also. Now he said he prays with folded hands to these rishis, विश्वामित्र को और वशिष्ठ को, कि कृपया आप मुझे वो नॉलेज दे कि जो आपके पास है, जिससे मैं खुश हो जाऊं। और अगर ऐसा नहीं दे सकते तो प्लीज अलाउ मी दैट आई विल लीव फूड एंड वाटर एवरीथिंग। मैं पानी वानी सब छोड़ देता हूँ एंड देन आई विल क्विट माई लाइफ। ये जब श्री राम जी बता रहे थे, तब ये डिस्कशन जैसे शुरू हुआ ना, विश्वामित्र आ गए, तो लाइक एनी वीआईपी कम्स, एक तुरंत फोन कॉल जाता है कि यहाँ पे कोई तो बड़े लोग आ रहे हैं। आपके कैलिफोर्निया में कोई विजिटर आ रहा होगा तो रूमर्स तो फैल जाते हैं ना कि हाँ ये आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं, ऐसे हो जाता है। वैसे भी वहां पे ऑल ओवर द यूनिवर्स द रूमर्स एंड द न्यूज स्टार्टेड स्प्रेडिंग कि दशरथ के दरबार में विश्वामित्र गए हैं, तो जरा कान लगा के देखो क्या हो रहा है। जैसे ही श्री राम जी आए और बात शुरू हो गई, तो तुरंत फटाफट फटाफट सब तरफ फोन कॉल चले गए, ऑल ओवर द यूनिवर्स। बड़े बड़े सेज, जो फिर नारद है, व्यास है, सारे ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सब सारी दुनिया इमीडिएटली सब लोग आके वहां पे रुक गए दशरथ के दरबार में। और वहां पे आने के बाद उन्होंने ये सारी बातें सुनी श्री राम जी की, और फिर उन्होंने कहा कि वाह, मतलब इतनी सुंदर बात उन्हें लगी, कहे कि अरे क्या बात कही आपने, यही तो हम सुनना चाहते थे। ये सारे लोग ज्ञानी हैं, हाँ उन्हें पता है श्री राम जी नाटक कर रहे हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा वैसा। ये जो नॉलेज है ना वशिष्ठ और विश्वामित्र के पास, वो निकालने का मौका उन्होंने दिया है, तो चलो हमें सुनने को मिलेगा। बस वी आर गोइंग टू लिसन टू दैट सुप्रीम नॉलेज। दैट इज व्हाई दे सेड कि हाँ हाँ कितना सुंदर नॉलेज है, कितना सब कुछ इन्होंने जो हमारे मन की बातें वही कही। नाउ उन्होंने देखना शुरू किया कि चलो विश्वामित्र और वशिष्ठ कुछ बोलेंगे करके। नाउ देयर ऑल ईयर्स, ऑल एनर्जीज, पूरे प्राण कानों में लाकर उन्होंने उन्हें सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया। तो विश्वामित्र ने क्या कहा, वशिष्ठ ने क्या कहा, ये हम अभी अगले सेशन में सुनेंगे। आई एम होपफुल कि आपको वैराग्य आया होगा। ओके, ऑल माइंड इज टोटली ओपन नाउ, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। बट प्लीज वीणा जी अग्रवाल जी को पनीर खिलाइए जरूर, अगर उन्हें मांगा तो। हाँ, ऐसे ही बैठ के मत रहिए, ठीक है। वी आर हियर, वी आर ऑल नॉलेजेबल। आई रियली अप्रिशिएट कि इस एज में भी आप लोग सुनते हैं, करते हैं। तो यू आर दैट बॉल ऑफ लाइट ऑफ नॉलेज कि आप कुछ दे सकते हो। तो रेस्ट ऑफ द वीक आप सोचिए कि रेस्ट ऑफ द मंथ कि व्हाट यू कैन गिव, व्हाट इज दैट वैराग्य विच मेक्स यू एम्प्टी बट स्टिल ब्रिंग्स यू इन एक्शन। तो अगला एक महीना आप इस बात पे काम करिए कि अंदर से पूरा खाली रहेंगे एंड लेकिन एक्शन में सब कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो देखें कि आपसे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या दे सकते हो आप। यू कैन गिव नॉलेज, यू कैन गिव मनी, यू कैन गिव सर्विसेज, जो भी है हेल्प जिस तरह से कर सकते हैं। एंड देन शेयर दैट एक्सपीरियंस, हाउ यू फेल्ट बीइंग एम्प्टी विद इन बट इन एक्शन आउटसाइड। ठीक है, दैट इज व्हाट द योग वशिष्ठ वुड बी। So here I will stop. Thank you for giving this opportunity. Now we'll open up for question answers. I really wanted to make it attractive, but ये interactive. But ये कुछ ऐसा हो जाता है कि एक बार शुरू हो गया ना, so I don't know what happens. It comes out. वो alertness थोड़ा नहीं रहता. I lose that alertness sometimes. तो ठीक है. We'll open up now for questions answers. Yeah. Sachin All ji, right. And yes. yeah, go ahead. योगेंद्र आप बोल रहे थे कुछ? नहीं आपके लिए कह रहा हूँ मैं। Okay. So anybody has question for Yatin? Yeah, so You first can surely put it in the chat or Sachin ji, Yeah. before anybody starts, I want to call Silva Panchavag, who has Sure. come from India yesterday only, and he called me yesterday
that he's very anxious to know about Yoga Vasishtha, and she had been studying Yoga Vasishtha also. So we want to know what she had studied and what are her views. Sure. Go ahead, Sulva. Silva? सबको नमस्ते. I'm very happy to be back from India after a long time. And ये सौभाग्य है मेरा कि जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि I arrived only yesterday, I mean day before yesterday actually, still jet lagged, but आते ही इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे देख के बहुत चित्त प्रसन्न हो गया. और मैंने योगेंद्र जी को कहा कि बहुत खुशी हुई मुझे ये देख के कि 7 lectures are coming and I'm really looking forward to them. तो बहुत ही अच्छा लगा. और यतिन जी के तो आभारी है ही है, बहुत बहुत धन्यवाद. बट सचिन जी आपके भी आभारी, योगेंद्र जी आपके भी आभारी कि आपने ये प्रोग्राम हमारे लिए अरेंज किया. और दिस इज रियली वेरी वेरी प्रेशियस. एंड ये जैसे इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि राम बहुत महान थे और किसी भी ओकेजन पे शांति से फेस करते थे, ये सब तो है, पर कैसे कर सकते थे, हाउ टू डू दैट, एंड हाउ a very ordinary person like us also at least try to know that and try to implement that in our lives. ये तो बहुत ही प्रेशियस बात है. इसमें से 1% भी हमारे में समझ में आए और हम कर सके इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में तो धन्य हो जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छी तरह से समझाया उन्होंने. एंड सोचेंगे आपके अगले लेक्चर तक सब इसके बारे में. एंड काफी मतलब ये जो कहानी में करके हर एक कहानी से कुछ बोध ले सकते हैं हम. जैसे शुरू से कि कर्मा इज मोर इम्पोर्टेंट और बुद्धि नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, तो दोनों चाहिए. ये तो है, किसी एक से काम नहीं चलेगा, तो क्यों नहीं चलेगा, अगली स्टोरी आती है. सो इंटरेस्टिंग भी है और बहुत प्रेशियस भी है. बहुत ही वैसे तो समझने को डिफिकल्ट है, बट फिर भी वो एज सिंपल एज पॉसिबल किया जा रहा है इसमें. स्टोरीज के वगैरह with the means of these stories it is made little simple to understand, little simple I am saying. And पता नहीं है 7 लेक्चर्स तक जरूर हमारे गांठ में कुछ काफी खजाना आएगा. I am sure about it. And thank you so much. Thank you all of you. यतिन जी, मैं भी पुणे से ही आई हूँ, पुणे की ही हूँ, और पुणे में भी बहुत विद्वानों को सुनने को मिलता है, आपको पता है, और सुनते भी आए हैं. तो यहाँ आकर भी वो चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, इसकी और स्पेशल खुशी है. थैंक यू वेरी मच. और सबको सारे जितने भी ट्रैवल के प्रोग्राम में आए सबको आपको कई महीनों के बाद देख के मुझे बहुत खुशी हो रही. थैंक यू. तो हमको जो सबसे अच्छी बात लगी इस प्रोग्राम में टुडे, मैं जो समझ पाया कि सपने देखिए, लेकिन उन सपनों को अचीव कीजिए. ये नहीं है कि सपने देख के खुश हो रहे हैं. आपको अचीव करना है सपनों को. तो हम अगर इस चीज को अमल में लाएं कि आप जो भी सोचे उसको अमल में लाने की कोशिश करें. और ये दूसरी बात क्या, मैं कहता 2021 में यतिन जी ने जॉब छोड़ा है ना. 2021 में 3 साल हो गए. और 3 साल में मैं आपको बताता हूँ, मुझे इन्होंने हल्का सा एक आइडिया दिया था कि YouTube पे आप मेरा ये प्रोग्राम थोड़ा देखो. मुझको नहीं मालूम था मराठी में इन्होंने 120 वीडियोस बनाए हैं. 45 मिनट से, कोई 45 मिनट्स का, कोई 1 घंटे का, 120, और हिंदी में 80. तो मोर देन 200 वीडियोस इनके YouTube पे चल रहे हैं. तो इतना अच्छा लगा. एक सुनो आप, उसको छोड़ने को मन नहीं करता है. तो अभी अब हम लेते हैं फीडबैक. Yogendra ji, thank you Yatin ji touching this Yoga Vasishtha, because lot of people don't hear that. Thank you so much.
ऐसा लगता है कि आज के युग में भी हम राम बन सकते हैं अगर हम योग वशिष्ठ की ये स्टोरियां सुनते हैं। इसमें भी हमें बहुत कुछ बोध मिल रहा है। जैसे आप आज कहा निर्भय, अनलेस वी आर निर्भय तो वैराग्य नहीं आ सकता है ना। वैराग्य होने के लिए भी निर्भय होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वैराग्य विल नॉट कम। तो जी सो नाइस कि आप ये स्टोरियां बता रहे हैं। तो ये स्टोरियों से बहुत बोध मिल रहा है कि वी ऑल कैन लर्न, वी ऑल हैव राम इनसाइड अस बट वी डोंट नो दैट राम। सो सही है। आपका ये जो स्टोरियों के माध्यम से हमें ये जो बताना है, ये जो बोध देना है, आई मीन वी ऑल आर वेरी थैंकफुल हियर कि हमारे अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो हमको स्टोरियां हम सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, फिर बाद में आप जब रिमाइंड करते लगता है हाँ ये कहीं सुनी थी, लेकिन चित्त में नहीं रहती ना। सो थैंक यू सो मच। तो मुझे आज ऐसे ही लगा कि जब तक निर्भय नहीं होंगे तो वैराग्य नहीं आएगा। जी सही है, थैंक यू। क्या मैं बोल सकती हूँ? आप थैंक यू जी। मेरे को इतना पुराना नॉलेज, बट नाउ इट इज even in this age we can follow that knowledge, and that one I learned. And also how many years was it वशिष्ठ ऋषि युगो, कितने युग हो गए, बहुत मतलब आपको श्री राम जी के समय त्रेता युग में ये बात कही गई थी। हाँ कितने पुराने हैं, मगर this युग we can follow the advice. राइट That राइट what I felt, positivity, निर्भयता, वैराग्य, I like it. इसमें से 10% भी ले लो तो भी थोड़ा लाइफ में चेंज हो जाएगा। थैंक यू सही है। यतीन जी, थैंक यू। आपका नाम का यतीन बोलने से क्या है? यतीन का मतलब यति होता है, यति जैसे ऋषि होते हैं, हाँ सन्यासी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस नेम। थैंक यू जी। अच्छा जतिन जी, एक मेरा भी प्रश्न है छोटा सा। हाँ जी बोलिए सर। मैं थोड़ा सा आई गॉट लॉस्ट इनटू वन एस्पेक्ट। मेरे को आई एम नॉट एबल टू रिकंसाइल विद दैट थॉट कि भाई ये राम जी तो आए थे ऐसे भगवान के रूप में, और ऊपर से वो कह रहे हैं दैट ही इज नॉट हैप्पी एंड ही कैन नॉट लिव हिज लाइफ। ये नहीं समझ में आया कि कैसे ये दिस थिंग इज टू बी, हाउ टू रिकंसाइल विद दिस काइंड ऑफ थिंकिंग एंड हैपनिंग। ये तो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था इस तरह का कुछ लाइफ में। इसके दो उत्तर हैं। बहुत एक तो यह है कि श्री राम जी यहाँ पे एक साधारण मानव के रूप में ही जिए। अगर पूरे रामायण में जितना भी बार देखेंगे, उन्हें कहीं पे भी एक भगवान के रूप में अपने आप को उन्होंने नहीं दिखाया। लोग कहते थे कि आप विष्णु का अवतार है, आप भगवान है, सब कुछ, परंतु अपने आप को उन्होंने कभी भी उस तरह से नहीं माना। तो एक सामान्य जीव के हिसाब से, एक सामान्य व्यक्ति के, मनुष्य के हिसाब से ही उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। दूसरी बात यह है कि कोई भी नॉलेज ये कहीं ना कहीं अगर बाहर आना है तो किसी ना किसी को थोड़ा अपने आप को अज्ञान में या ऐसी सिचुएशन में दिखाना पड़ता है। तो श्री राम जी ने वही किया, क्योंकि लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए वो नॉलेज वशिष्ठ से लेकर आना था। तो इसलिए उन्होंने फिर दिखाया कि हाँ चलो मैं ड्रामा बहुत बड़ा जब ड्रामा कर दिया उन्होंने। तो है, हम तो ऐसे ही मानते हैं। जब और शकुंतला जी, जब मानव के रूप में जन्म लिया उन्होंने, तो वैसे ही सामान्य मानव के जैसे कर्म किए उन्होंने, और उन संघर्षों के बीच में से गुजरते हुए अपने को बाहर निकाला, विजय प्राप्त करी। यही बड़ी बात है। आज का जो ये भाषण था वो बहुत ही सुंदर, प्रेरणाप्रद, ज्ञानवर्धक रहा, और बड़े रोचक ढंग से यतीन जी ने हम लोगों को योग वासिष्ठ की कहानी सुनाना प्रारंभ की, और आगे के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे। हमें उत्सुक हैं आगे की कथा सुनने के लिए। बहुत बहुत आभारी हैं आपके, बहुत आभारी हैं आपके। तिलक जी आपको थोड़ा और एक आंसर में देता हूँ कि एक पुरानी कहावत है कि लास्ट में पैर मिट्टी के होते हैं। जो भी मैटर होता है
तो जब भी आप प्रकट रूप में आते हो तो आपको चराचर के नियम फॉलो करने पड़ते हैं, चाहिए आप भगवान क्यों ना हो। तो दैट्स ऑल्सो वे टू लुक एट इट कि देर इज नो एक्सेप्शन, देर इज नो VIP ट्रीटमेंट कि आपने अवतार लिया है फिर भी आपको you have to go through the laws of nature. Realize the answer. Very nice. Thank you so much. Yeah. भारत से नमस्ते। हाँ जी गणेश जी। जी नमस्ते, सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छी सीरीज आपने शुरू की है और सबसे बड़ी बात यह है कि ICC सीनियर्स में सभी लोग शायद सब कुछ अचीव लाइफ में जो करना था वो तो कर चुके, और उसके बाद अब अगर जिसे कहा कि यतीन जी ने को लोगों ने कहा कि भी 60 के बाद करना, तो 60 के प्लस वाले ही हैं, तो सब कुछ वो जानना चाहते हैं कि अब हम अच्छा जीवन कैसे जिएं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्व है मेरे ख्याल से हमारी सभी कहानियों में, हमारे सारे शास्त्रार्थ में, संवाद में, कहानियों के माध्यम से, जिसे हम कहा करते थे कि किस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। और हमारे जो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं बच्चे विदेशों में, वहां बैठे हैं और बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। वो अक्सर हमसे डिस्कस करते हैं कि पापा ये प्रॉब्लम है क्या करें, मामा ये प्रॉब्लम है क्या करें। आई थिंक हमें उनको उस तरह से, जैसे पहले बड़े लोग सुनाया करते थे कहानियां सोने से पहले या उस तरह से, तो हमें वो कहानियां सी सुनाकर उससे क्या अचीव कर सकते हैं, क्या उससे शिक्षा मिल सकती है, और इस सिचुएशन में वहां पे हमारे उन ग्रंथों में क्या कहा गया कि हम और बेहतर कर पाए, ये हमें निरंतर संवाद करते रहना चाहिए, जिससे बहुत फायदा हो सकता है। और कम से कम हम उनको आगे के आने वाले जीवन में हम उनको उस लायक बना देंगे कि वो अपने बच्चों का परवरिश अच्छे से कर पाएं और बहुत अच्छी नॉलेज आगे दे पाएं। लेकिन माध्यम हमारे वही शास्त्र रहेंगे, हमारी सारी वही विद्या रहेगी जो भारत की निरंतर सबसे बड़ी विद्या है। यही बहुत फायदे देने वाली बात है। धन्यवाद। थैंक यू गणेश जी। आप Very nice. चंडीगढ़ से जगह में है, मॉर्निंग से है, सिर्फ मॉर्निंग क्या बजा है वहाँ पे अभी? हाँ, मैं सुबह करीबन 5 बजे से उठा हुआ हूँ और सुन रहा हूँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो और किसी का क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? और ये गणेश जी, अभी जैसे ये यतीन जी ने कहानी के अंदर कहानी सुनाने की कोशिश की, और आप भी जो है बजाज के अंदर बजाज दिखाई दे रहे हैं, नो? जी। वो कहते हैं ना कि जो सुनो उसको इम्प्लीमेंट अवश्य करो, वरना सुना हुआ थोड़े दिनों में भूल जाता है। तो आपने फटाफट इम्प्लीमेंट कर। थैंक यू। यस, मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आप सब सीनियर्स हैं, बट देखिए कि जैसे अभी गणेश जी ने कहा ना, काफी लोगों को इसका उपयोग हो सकता है। तो फ्रॉम द एज ऑफ से 20 या 18 से भी, वहां से जितने भी एज के लोग हैं आपके फैमिलीज में, उन्हें भी लेकर आए। डोंट लीव इट ओनली टू सीनियर्स। ऐसा मत इंप्रेशन जाने दीजिए, क्योंकि आपके काम बहुत अच्छे चलते हैं। तो सीनियर्स आर द ऑर्गेनाइजर्स, बट द इवेंट्स आर फॉर एवरीबडी। ऐसा कुछ मैसेज अगर आप दे सकते हैं तो काफी लोगों को फायदा होगा। मुझे पता है वर्किंग डे होता है, टाइमिंग है, पर जो भी अचीव कर सकते हैं उन्हें कहो कि ये सचमुच उनके लिए है। हम तो ऑर्गेनाइजर से करके बता दीजिए। यतीन जी, what I feel is they will not be able to come, they will not be interested to come, लेकिन हम थोड़ा सा जिस्ट बनाएं डेली का 4-5 लाइंस का, और उनको ये बताएं कि आज हमने जो सुना उसमें ये सुना, वो धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा जागेगी, और वो 2-2, 4-4 लाइंस तो हमारी सुन लेंगे, लेकिन 1-2 घंटे बैठेंगे नहीं हमारे साथ। लेकिन हम उनको जस्ट बता दें तो उनको इंटरेस्ट जागेगा। मे बी दे विल बी लेटर ऑन, बीज पड़ जाएंगे उनके जीवन में, और कभी ना कभी वो पल्लवित पुष्पित होंगे। वेरी नाइस। वही बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बढ़िया। 10 बातें एक्चुअली बोली। दैट इज व्हाट आई डू आल्सो। डिनर टेबल पे ना, मैं जैसे कोई आज अच्छा सुना तो डिनर टेबल पे वो सुनाती हूँ, और बहुत ध्यान से सुनते हैं। और जैसे कल से मैं बात कर रही हूँ कि टुमारो से ये सीरीज है, तो आई एम श्योर इवन बिफोर आई स्टार्ट टुडे एट द डिनर टेबल दे वुड से, तो क्या सुना आज, सुनाओ। दे वांट टू लर्न, यस। They are busy, but they are not that they are not interested. और यतीन जी ने अपनी छोटी छोटी लघु कथाओं से जो समझाया ना, हाँ, इसमें से 1-2 कहानी बताऊंगी कि इसमें देखो कैसे ये है, कैसे हम इससे ये लर्न करते हैं। They would contribute also to their
इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चों के लिए। अभी बिल्कुल, हमने यही सीखना है कि हमने ये सारी विद्या लेकर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यूज कैसे करें। अगर बिना यूज के हम उसको सुनते रहे तो कोई फायदा नहीं, कोई हम फायदा मरने नहीं, वाले ये- हैं, पक्का ये मान के चलें। लेकिन बिल्कुल। जाते जाते बहुत कुछ सिखा जाएं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को। बलजीत कुछ कहना चाह रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी। आप म्यूट हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती। आई रियली एम सो इग्नोरेंट अबाउट एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। और जैसे ना हर एक चीज स्पंज के ऊपर एब्जॉर्ब करता है, स्पंज उस पर डालो कोई भी चीज तो वो अंदर चली जाती है उसके। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद मी एंड आई एम जस्ट लिसनिंग एंड दो तीन बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी कि एक तो कर्म करो और जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, कोई ना कोई जो कुछ और जो सीखा है उसको उसका इस्तेमाल करो, उसको ये नहीं कि अंदर डालते रहो। दूसरे डरना नहीं है किसी चीज से, कोई किसी चीज का भय नहीं है। जो मर्जी होता है, जो होता है भगवान की इच्छा है। अब तक भगवान ने अच्छा किया है तो आगे भी अच्छा करेगा, खराब हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो अगर ऐसे विचारों के साथ रहो और ये इतने आप जतिन जी आपने इतना अच्छा सुनाया कि I was totally absorbed. I could not even blink my eyes. I really loved it. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू। तो सचिन जी कंक्लूड करेंगे क्या? Yeah. हाँ जी। Last anybody किसी को कुछ पूछना है? मेरे को पूछना है, सीता को जो अपहरण हो गया, बाद में वो अयोध्या आ गई और बाद में सब रामायण हो गया, उसके टाइम वशिष्ठ ने उनको कुछ एडवाइस दिया, कुछ बताया? मेरे को इतना मालूम नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही। कौन से इसमें वशिष्ठ तो उनके साथ हमेशा के लिए थे। तो आप वो पूछ रहे सीता का त्याग किया इसके बारे में पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। अपहरण हाँ, क्योंकि अपहरण बोल रही हैं वो, अपहरण नहीं नहीं, त्याग किया वो भी त्याग पूछना। किया। ओके। हाँ, वो प्रेग्नेंट थी और त्याग कर दिया ऐसी सिचुएशन में, ऐसा ऐसा सवाल है। रामायण में ये कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अग्नि परीक्षा क्यों करवाई सीता की, या उनका त्याग क्यों कर दिया। हाँ, इस तरह की बातें आती हैं। अभी इसके कई सारे उत्तर हैं, कई सारे लोगों ने अपने अपने तरह से उत्तर दिए हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा उत्तर एक ही रहता है कि श्री राम जी की एक्शन को, उनको समझो और उसको क्रिटिसाइज करो, इतनी बुद्धि मेरी नहीं है। मैं बहुत एक छोटा सा इंसान हूँ। श्री राम जी किस तरह से जिए, उनका नॉलेज क्या था, उन्होंने कोई डिसीजन क्यों लिया, ये समझना ये मेरे बस की बात नहीं है। बस उन्होंने जो किया होगा वो उस परिस्थिति में, वहां की सिचुएशन में अच्छा किया होगा। जहां तक सीता जी के बारे में कहा जाए तो ऐसा तो नहीं था कि उनका सीता जी के प्रति प्रेम नहीं था करके। हाँ, एक अपनी पत्नी के लिए उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। रावण को हराना, मारना ये तो देवताओं के लिए भी पॉसिबल नहीं था। समुद्र पार करके जाना वो भी किसी को पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने वो सब कर दिया। तो हमारी संस्कृति तो रही है कि पत्नी के प्रति जो भी है वो हमारा आधा हिस्सा होती है, तो उसके लिए तो हम सब कुछ कर जाते हैं। तो वही आदर्श उन्होंने रखा कि किस तरह से एक स्त्री की गरिमा को भी प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। जब उनका सीता का त्याग करने के बाद जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उस समय भी अपने बाजू में सीता जी की पूरी मूर्ति बना के रखी थी। ऐसा नहीं था कि सीता जी उनके मन में, हृदय में नहीं थी करके। एक राजा के रूप में उन्हें शायद कुछ निर्णय लेना पड़ा होगा, जो भी होगा वो उस समय की और उस सिचुएशन की और उनके शास्त्रों की बात रही होगी। पर परित्याग किया मतलब मन से निकाला ऐसा नहीं था, वो उतना ही प्रेम करते थे सीता के लिए। तो उसमें कोई संशय न रहे, बस यही मैं कह सकूंगा। वही जो आपने बोला भी ना अपनी कहानियों में भी कि भाई वो पढ़ाई कर ली, जैसे प्रिंस होते थे, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद फिर पूरे नगर में घूमना, देश देश घूमना। तो ये तो कहानी वहीं से आई थी ना, सीता जी को तो त्याग किया, लोगों से सुन सुना की तो हुआ था ये। जी जी। That was basically done by him, not as a husband No, not who doubts his wife's character, not at all. That was done only as a king. as a किंग king. की ड्यूटी एक्चुअली दैट शोज थोड़ा सा और महानता दिखाता है कि इतना सैक्रिफाइस, कितना दुख हुआ होगा उन्हें सीता को त्यागने में। वो भी किया जस्ट टू पैसिफाई, सेटिस्फाई हिज सब्जेक्ट्स, प्रजा को खुश करने के लिए। को खुश करने के लिए। उनको प्रेग्नेंट थी तब भी उस समय उनका त्याग किया।
बहुत बड़ी बात थी ये। I don't have any question. और चंद्रिका बोलिए। ईश्वर जी, I don't have any बोलो। question, but I हाँ wanted to. चंद्रिका जो चंद्रिका प्रश्न बोल- किया है ना इन्होंने हेलो कल्पना जी ने, तो सीता और राम का संवाद है उसमें। राम नहीं चाहते थे कि मैं सीता को छोड़ूं। सीता ने स्वयं कहा था कि आप इतने मोह में क्यों फंसे हो, आप एक राजा हो, आपको राजा का फर्ज भी निभाना है। तो सीता खुद कहते क्या करूं, कहते मेरा त्याग कर दो। ये भी आता है रामायण में। ये नहीं कि ऐसे ही उन्होंने फटाफट उसके कहने से छोड़ दिया। बहुत विचलित हुए थे वो और बड़े दुखी हुए थे। फिर सीता ने खुद ऑफर किया था कि हाँ कोई बात नहीं, आप राजा की ड्यूटी पूरी करो। दूसरी बात जो आज मैंने सुनी है ना, इनकी कहानी में सबसे पहली बात जो आई है वो जो है अभिशाप, और वो अभिशाप देता है और वो क्या देता है, वरदान वर देते हैं। तो वो कहता है देखो, वरदान कहता है ना कि सुनने वाला और लेने वाला और देने वाला दोनों तैयार, एक्सेप्टेड, राइट। तो दोनों को तैयार। कोई बात सुनाए, दूसरा सुनने वाला तैयार हो। अब कई बार मैं सोचती हूँ कि हमारे जो आईसीसी ग्रुप है, ये भी वो सब कुछ कर रहे हैं। ये जो कुछ इनके पास है वो दे भी रहे हैं और आगे बांट भी रहे हैं। जो अब इस उम्र में सारे, अब ये योगेंद्र जी हैं, रीना जी हैं, बलजीत जी हैं, कितने हमारे सारे जो है दे आर डूइंग समथिंग। अब जरूरी नहीं तो अपने वक्त के हिसाब से, अपने आयु के हिसाब से, हालातों के हिसाब से सब कर रहे हैं। बाकी रही बात बच्चों की, अब बच्चे अलग युग में पढ़ रहे हैं। अब देखो, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जब इस उम्र में आएंगे कुछ ना कुछ करेंगे समाज के लिए। उनकी भी वैसे ऐसी भावना तो दिखाई देती है कि वो कुछ करें, चैरिटी करते हैं। अब हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। अब आज के हालात फर्क है, पहले के हालात फर्क थे। अब हम उनको पीछे तो नहीं ले जा सकते, बिल्कुल आगे सही। बढ़ेंगे ना वो। तो काफी सारी एनजीओ के, मेरी बेटी है वो काफी ये एनजीओ सभी के बच्चे साथ, कर रहे हैं। तो साउथ एशियन के साथ, मतलब वुमेन के लिए वो कर रहे हैं। तो परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, वो और आगे करे। और हमारा फर्ज है कि हम भी उनको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ईश्वर जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगिंदर जी, वीना मोहन जी, आप कुछ कह रहे थे मोहन जी? Anji, I don't have a question, but I just wanted to compliment Yatin ji for such a nice program. I am Tilk ji's younger brother in Columbus, Georgia, and I really enjoyed the program, and I really enjoyed his technique of making it in little stories, and we can learn something from each story. And also, the knowledge is something not to be kept to yourself, but to be shared. I like his approach. Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू। तो अभी लास्ट में चंद्रिका चंद्रिका रहा देख। मैं ऐसा ही इतना ही कहती हूँ कि अभी सुलभा जी ने कहा कि हमें थोड़ा बच्चों से भी ये बात करनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ बाप के सिवा कौन सिखाएंगे ये बात बच्चों को, और कहाँ से वो नॉलेज लेंगे जो हम प्यार से देंगे। तो हमेशा मैं भी हमेशा यही कहती हूँ बच्चों को अपनी बात, खास करके मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन इतना अच्छा मेरी बात सुनते हैं कि जो मैंने कहा वो दूसरे दिन में पूछती कि कल मैंने क्या कहा था, तो वो जवाब बराबर देते हैं कि हमने ये सुना। तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन होता है कि ये मेरी बात सुन रहे हैं। और एक डरने की बात, अभी बलजीत जी ने कहा कि हिम्मत रखना, डरना नहीं कभी। तो ये रामायण की बात में भी पूरी यही है कि 14 बरस वनवास में राम ने कितनी तकलीफ उठाए और कितना मुश्किल हुआ, कहीं भी डरे नहीं वो, और हिम्मत से काम करे। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना कि हमें कोई भी तकलीफ आए, इसमें पीछे कोई अच्छा कारण हमको जरूर मिलेगा। तकलीफ के पीछे है ही कुछ ना कुछ, अच्छाई तो है। हमेशा ये सब हम माइंड में बहुत रखना है और बच्चों को खास ये सुनाना है, और वो सुनने के बाद भी परीक्षा लेना है, हंस के उसको पता ना चले कि क्या आपने सुना, मैंने कल कहा था वो। तो हमें भी संतोष होगा और वो लोग को भी ज्ञान मिलेगा। बस वही। थैंक यू। थैंक यू चंद्रिका जी, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा योगेंद्र जी, मैं मेरा एक लाइन और comment कहना है। चाहता हूँ।
मेरा एक कमेंट है बिफोर आई फॉरगेट कि I am the generation, I am not senior, I am not 80 or 70-year-old. So the younger perspective, I think what I will emphasize, कि anything I learned from my grandparents, I think you are all my grandparents' age. जो खुद का करते हैं, जो खुद सुबह उठेंगे, जो खुद प्रोटोकॉल करेंगे, तो उनका देख के अपने आप हम फॉलो करते हैं. So lot of things I learned from my grandparents because I grew up with them. Right. But अगर आप लेट जागते हो, सुबह उठने में मुश्किल होती है, खुद की हेल्थ का ठीक ख्याल नहीं करोगे, खाना ठीक से नहीं खाओगे, तो आपके बच्चे आपका नहीं मानेंगे. बिल्कुल पर अगर आप करोगे तो वो अपने आप उनमें आ जाती है. कि जैसे मेरा बच्चा अभी 20 साल का हो गया, तो जब वो 10 साल का था तो रात को मैं आईपैड मेरा लेके बैठा, तो वो भी उसका छोटा आईपैड लेके मेरे बाजी जो भी मैं करता हूँ वो करता था. तो मैंने बोला कि 10 बजा है, यू शुड बी इन बेड बाय नाउ. तो वो बोला कि व्हाट अबाउट यू, यू शुड बी इन द बेड टू. So I learned the lesson. So बड़ों को करना पड़ता है. yeah, so जब मैं 10 बजे सोने लगा तो वो भी 10 बजे अपने आप सोने लगा. So that's the way it works. But this will be a good impetus for us to develop a good lifestyle and सिर्फ बातों की नहीं, जैसे सुलभा जी ने बोला कि उसका इसेंस लेके उसको रियल लाइफ में हम टच करेंगे तो ही इसका हम में काफी बदलाव आएगा. और इसीलिए ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक सेशन करो, 1-1.5 घंटा, फिर बातचीत करो, फिर डाइजेस्ट करो, और फिर वापस आओ, फिर और कुछ लो, और फिर करो. So I'm very happy to see all the interactions and joining now. Ganesh ji, you were saying something. एक सेंटेंस मुझे बोलो, दो तीन सेंटेंस. मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि जो मैंने पहले बात की कि बच्चों से संवाद अवश्य करें, उसका बहुत बड़ा फायदा एक ये होने वाला है कि हम कई बार जो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी जिज्ञासाएं नहीं उठती, प्रश्न नहीं उठते. जब हम उनसे डिस्कस करेंगे तो वो प्रश्न करेंगे हमसे. अच्छा आपने ये सुना, तो वो प्रश्न हम अगले हफ्ते पूछने लायक हो जाएंगे यतिन जी से, और अपनी नॉलेज का विस्तार कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न हमारे अंदर से पैदा ही नहीं हो रहे, क्योंकि हमें उतनी वो नहीं है. लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से, उनके प्रीव्यू से हम जो बात सुनेंगे तो वो हमें कहेंगे पापा ये बताओ. फिर उस समय हो सकता है हमें कहें कि हम अगले हफ्ते बताएंगे बात करके. वो दैट इज मतलब ये टेक अवे बहुत जरूरी था आज ही के दिन से ही इसको शुरुआत करना. और यतिन जी एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि विच आई एम रियली गोइंग टू प्रैक्टिस. एंड वन थिंग इज कि जो भी आप सोचते हो अपने दिमाग में, जो भी आपकी, चाहे वो अच्छा सोच रहे हो या खराब सोच रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वट एवर इट इज, जो आप सोचते हो वो होता है. तो व्हाई नॉट थिंक पॉजिटिव एंड व्हाई नॉट थिंक इन अ वे दैट good things happen around you. And I think that is something to really take away from here and work on. That is a big thing. Really big thing. मैं ये कहना चाहता हूँ यतीन जी कि भाई कैसे टेक्नोलॉजी में इतने एक्सपर्ट हो गए, इतने हाई लेवल पहुंच गए, और फिर आपने कैसे आपने को ट्रांसफॉर्म किया, वो सारा झलक रहा था बीच बीच में. एवरीवेयर वी आर गेटिंग सम ग्लिम्पसेस ऑफ दैट. तो बहुत ही अच्छा लगा कि भाई देखो ये कितना आपका जो इंटरेस्ट है, जितना जोश है आपका इस सब्जेक्ट के ऊपर, वो कैसे उसने आप एवरीथिंग इट हैज ओवरटेकन एंड नाउ यू आर स्प्रेडिंग चीयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फ्रॉम मेनी एंगल्स लाइक दैट. एंड थैंक ऑल ऑफ यू. थैंक यू कि आपने सारा ऑर्गेनाइज किया और हमें ये मौका मिला. थैंक यू. तो आज के प्रोग्राम के ऊपर जो बीना ने एक कोट ढूंढा है वो कुछ शेयर करना चाह रही है. पर मैं यतीन जी आपसे ये बोलूंगी कि जब मैंने इस पता लगा कि योग वशिष्ठ प्रोग्राम आ रहा है, तो उससे पहले मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम था उसके बारे में. तो तब थोड़ा सा सर्च किया, आपके यूट्यूब के सुने, और ये, लेकिन आपके मतलब हर बार मुझे ऐसा लगा कि आपको सुनना चाहिए. और आज सब लोगों के कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स लेके बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आपको सबने पसंद किया. और अब अनफॉर्चुनेटली मैं अभी 15 दिन में इंडिया जा रही हूँ, और लेकिन आपके सारे प्रोग्राम मॉर्निंग में उठ के जरूर सुनूंगी, ये मेरी इच्छा है. आगे कितना कर पाऊंगी मुझे पता नहीं, लेकिन काफी इम्प्रेसिव है जी. अभी एक कोट है आज का, मेंटल कंडीशनिंग इज ऑफ 2 types. Mental conditioning is 2 types, the pure and impure.
the pure and impure. The impure is the cause of birth. The impure is the cause of birth, and the pure is liberants are from birth. And the pure Pure liberates one from birth. Birth, oh, I see. Pure Pure is to one liberate us from from birth Yeah. and death cycle. Yeah. So Okay. सचिन Very nice, चलो। जी, सचिन आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और आपने वादा किया है कि और 6 महीने और आप ये हम जी, मैं लाइफ टाइम जुड़ा रहूंगा आप वही- जैसे वही, लोगों के ये साथ। कहना चाहता हूँ। महीना तो बस सेशन मैं कहना चाहता क्या हूँ हमारे बच्चे सुन सकते हैं उनका ऑनलाइन ऐसा कुछ है क्या वो तो इंफॉर्मेशन YouTube पे है बहुत सारे। यूट्यूब पे है। मैं इनके जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा। आपको मराठी में आप जरूर देखिएगा, आपको मराठी में बहुत अच्छा लगेगा। Recording नहीं, stopped. हमारे बच्चों को देखना चाहिए क्योंकि whenever I talk about they talk about Sita, why he did that to Sita, और- ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यतिन जी से तो पूछिए उनको इंग्लिश में इंग्लिश भी है में क्या? देखना चाहिए। यतिन जी आपके वीडियोस इंग्लिश में भी है क्या? नहीं, इंग्लिश में नहीं है। अच्छा, हिंदी मैं है। इंग्लिश में एक सीरीज करूंगा, लेकिन वो नहीं, it is तो only- आगे वाली जनरेशन के लिए वही चाहिए। हाँ। और सचिन देशमुख जी, सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपको जाता है, जिसकी वजह नहीं, से काम क्रेडिट तो स्पीकर को जाता है और दूसरा क्रेडिट श्रोतों को जाता है। नहीं लेकिन आप थैंक उनको यू ढूंढ के लाए। ओके, तो एक सवाल है। आपने नाम इसका रखा है योग वशिष्ठ। वशिष्ठ तो स्टेज है, ये समझ में आता है, तो योग का क्या मतलब यहाँ पर? हाँ, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये। योग वासिष्ठ है, वशिष्ठ ऋषि ने बताया इसलिए वासिष्ठ है। और योग इसलिए है कि ये दो चीजों को जोड़ता है। योग कौन सा होना चाहिए? योग किसको कहते हैं? योग मतलब कुछ तो मिलना, राइट? कुछ तो जोड़ते हैं। किस चीज को जोड़ रहे हैं यहाँ पे? ये ग्रंथ जो नॉलेज देता है किस चीज को जोड़ता है। तो हम अपने आप को जो समझते हैं वो, और हम जो है वो, है ना? हम अपने आप को ईश्वर से अलग समझते हैं। आत्मा और परमात्मा अलग समझेगा। बहुत दोनों को प्यारा इकट्ठा बोल दिया। करना, दोनों बलजीत- को इकट्ठा लेके आना, यही योग है। योग है। योग वासिष्ठ। वेरी गुड। कितना योग बन गया, हाँ। हमारे मिलने का योग बन गया है। थैंक यू यतिन जी, अभी प्रोग्राम को हमको बंद करना होगा। ओके, मैं जी, अपना हाँ, अगले thank हफ्ते थर्सडे का प्रोग्राम बता देती हूँ। इस थर्सडे को वी आर हैविंग डिवोशनल, तो आप प्लीज सब लोग अपने नाम दीजिए और उसमें आप कोई कथा कहानियां रामचंद्र जी की, एनीबॉडी, कुछ भी आप वहां लेके आइए। अगर आप जो आज सुना है उसके बारे में ही अगर कुछ सुनाना चाहें वो लेके आइए। गाना गाना है, भजन गाना है, शब्द गाना है, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू डू प्लीज गिव मी योर नेम्स, send it to me, and then I will publish the list tomorrow. Thank you so much. Thank you Bye-bye. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यतिन जी। नमस्ते Thank you. नमस्ते Namaste. Thank you, Ji. Thank you so much. Thank you. थैंक यू शुभ रात्रि। थैंक यू अरे थैंक यू।